So, hi team. Good evening. A warm welcome to all of you. Uh, this is Ajay Shankar, and in today's webinar, we are going to talk about the internship. What it is, why you need to do internship, even after studying in college. What is the actual need of internship, and in which topic, which technology you should do internship. What is the main purpose of internship, and how this internship is going to get you a job, which is your ultimate goal, correct, into your own stream, rather than company will pick you and decide the career for you. You should take the career, you should take your own career in your hand and drive it, right? So what, why and how, हम ये सारे पॉइंट्स पे आज डिस्कस करेंगे, करेक्ट. आई विल ट्राई टू मेक इट एज शॉर्ट एज क्रिस्प एज मीनिंगफुल एज पॉसिबल, करेक्ट. बट सम टाइम इट डू हैपेंस दैट कोई टॉपिक निकलता है कि इस पे हम डिस्कशन करते हैं तो वो थोड़ा लंबा चल जाता है, बट आई विल ट्राई टू मेक इट as short as possible. Okay, so let's start now. So as you can see, this is my profile, right? I have around 15 years of experience in this IT industry. I worked on almost all kind of technologies as well as companies. I mean, I am not saying like all companies, but all kind of companies. When you say all kind of company, yes, you heard me right. बहुत सारे टाइप की कंपनी होती है. सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है, सोल्यूशनिंग कंपनी होती है, राइट. सो हर तरह की कंपनी में वर्क मैंने किया है, एंड राइट नाउ आई एम हेडिंग द R&D डिपार्टमेंट ऑफ स्कॉर्पियो सोल्यूशन मलेशिया, बेस्ड आउट ऑफ मलेशिया. So let me give you a brief introduction about the company also, whom we are representing. So Scorpio Solution is basically a solutioning based company, correct, which basically provide the critical vital solutions to the business system. अब critical vital solutions क्या होते हैं? For example, already a setup is there, already the setup is going on, already the software is there, everything is there, correct. But अब क्या है, उसको expand करना है, as per latest technology उसको grow करना है, correct. Different solutions integrate करने हैं existing what do you call existing system में, correct. So instead of creating a software again right from the scratch, creating an application again right from the scratch, what we do is we provide the solution कि भाई existing system will also not get disturbed, as well as they will get their problem also solved. You getting my point? अच्छा, आजकल किसी ने BI सुना है? बिजनेस इंटेलिजेंस, BI. Yes, sir. BI, राइट, करेक्ट, बहुत कॉमन टर्म है BI. डेटा साइंस भी सुना होगा, राइट, करेक्ट. APIs भी सुना होगा आप लोगों ने, करेक्ट. सो ये Yes, सब sir. टर्म्स जो है, हाँ, Application. all these terms are basically related to your solutioning, because these things basically provide solutions, correct. So what Scorpio Solution basically do is they provide the critical and vital solution to Singapore, Malaysia, Indonesian governments. Basically, as of now, we have covered the government department, and we have started making a smart city projects of Malaysian government, Singapore government. Smart city project जिसके अंदर हमारा हमारा what you call एक पूरा first phase what we are doing or what we already did so far is हमने एक first pilot successfully run किया है. We call it dashboard, city dashboard, smart city dashboard. What this smart city dashboard is doing is why I'm giving you this picture is just to tell you, just to tell you that what you're going to get in the internship. Once you offer the internship, what you're going to get from our side, right? What kind of project this corporate solution is basically building, right? It's not like simple credit operation. ये simple जो credit operation होते हैं, employee management, hospital management से related नहीं है. We are talking about next step, right? Next technology. We are talking about cutting edge technologies. So let me just give you the brief introduction about the project that we are building, so that you will understand what kind of project we are dealing in, and what kind of project you will also be doing when you join us as an intern, and then later when you join us as an employee, right? So we are basically making a smart city. Our product name is Vajra, Vajra Smart City. And this Vajra Smart City has so many chains. So one of it is Vajra, Smart City Dashboard. So Vajra Smart City Dashboard जो एक पायलट प्रोजेक्ट हमारा है, जो हमने मलेशियन गवर्नमेंट के लिए किया है, which is just now launched, and it is working successfully. So what we are doing over here is
You guys have seen dashboard, right? आप लोगों ने dashboard तो सुने होंगे. I'll take 5 minutes to explain Yes, all sir. these things. Okay. आप लोगों ने dashboard सुने होंगे, बहुत सारे dashboard सुने होंगे. You might have seen dashboard in in your what do you call pictures, movies, Hollywood movies also. Correct. आप metro में travel करते हैं Payment अपने portals. payment portals. No, not that dashboard. Video dashboards जहाँ पर CCTV cameras के live feeds आते हैं. That kind of Yes, yes, dashboard yes. I'm talking about. Monitoring. Monitoring. Correct. Exactly. Correct. Okay. So monitoring, yeah, monitoring dashboard. So ये तो normal dashboards है. Correct. Why these are normal dashboards? Let me just open my company, email as well. Sorry, company website as well. Just a second. Scorpius. Yeah, this is our company website, and let me just. It's visible to all of you now, right? This is our company website. Scorpio solution, our IT solutions, right? You can go through with this website, and you will get to know what we do, how we do, right? Everything, mobile apps, training development, software services. We are into all kind of solution based applications. Correct. Solution based applications. Correct. So what I was talking about is the smart city dashboard. Correct. So smart city dashboard is not which is only taking the feed by live video feeds are in. No, not like that. What it is doing is basically it is giving us the AI based information. For example, we will be having the live feed कि कितने male, female, children, old age, right, middle age people are there on the street. I mean, of course, with the help of different cameras. So live cameras हमको जो है feed दे रहे हैं और उन cameras के feed के ऊपर हमने AI apply किया है, and with the help of AI we are able to identify this is how many male, how many female, how many children, how many middle age, like this. This is first type of information what we are getting live for today. Okay, from different cameras all across Malaysia. Then how many let's say drivers has wear a seat belt, how many people are wearing mask. Correct. Out of how many, let's say today camera captured let's say 1 lakh people, so out of 1 lakh how many have wear the mask, कितनों ने मास्क पहना है, कितने ड्राइवर्स ने सीट बेल्ट पहनी है, कितने ड्राइवर्स ने हेलमेट पहना है, टू व्हीलर्स ड्राइवर्स ने, राइट, कितने ट्रक heavy vehicles, cars, bikes, right, three wheelers are there on the road. So ये second type की information है. Correct. Third type of information is, which is very very awesome, जो फीड लाइव पुलिस को जाता है और ट्रैफिक पुलिस को जाता है एंड डिस्ट्रिक्ट को जाता है. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस, ट्रैफिक पुलिस एंड द पुलिस. सो ट्रैफिक पुलिस को चाहिए मुझे हमें इंफॉर्मेशन मिले कि इलीगल पार्किंग, इलीगल डंपिंग कहाँ है. सो पार्किंग एंड डंपिंग तो कैप्चर हो जाती है वीडियो पे, मतलब इन योर सीसीटीवी कैमरास, दैट इज नॉट द बिग डील. What we are doing is, again, we added AI, artificial intelligence, on top of it, and whatever camera is capturing on the what do you call important site, so there we are capturing is there any illegal dumping and parking. अगर कोई इलीगल डंपिंग पार्किंग है, कार पार्किंग हुई है या इलीगल डंपिंग हुई है, किसी ने कूड़ा फेंक दिया, राइट, समथिंग लाइक दैट, सो दे इमीडिएटली कैप्चर एंड सेंड द रिपोर्ट, सेंड द जीपीएस लोकेशन ऑफ दैट प्लेस इमीडिएटली टू योर डिस्ट्रिक्ट पुलिस. ट्रैफिक पुलिस में जितने लोगों ने लाइट जंप किया है, कैमरा जितने लोगों ने जो ट्रैफिक वॉलेशंस हैं वो किए हैं, उनकी डायरेक्ट रिपोर्ट सीधा ट्रैफिक पुलिस को जाती है. एंड द चेरी ऑन द टॉप इज, if if the camera found any blacklisted person, correct, it immediately triggers a report with the picture, correct, to actual police, to police basically, like, which handles the criminals and all. So blacklisted, I guess you all know what is blacklisted people. What Yes, is black, sir. correct? Which broke the rules, Correct. government Not rules. only that, people who are having their criminal records, correct. Yes, yes. Correct. So isme, now you can understand this is not a normal dashboard which is just showing you the live feed. On top of it, we added this AI to make sure that we can get the exact required information. And trust me, my friends, this is the next level work which is going to come in India as well.
अभी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ डैशबोर्ड्स हैं लाइव फीड के. That is also not in every city. I mean, if you see Hyderabad is the high tech city actually, which is having the live feed. Delhi में भी कुछ areas में है. Bangalore, which the place which I belongs to basic Bangalore. We don't have live feeds in Bangalore, but in Hyderabad we have totally what do you call camera focus roads, cities, markets, right? So next जो ये dashboard है जो हमने मलेशिया में apply किया, that is going to come in India. So this is what we are talking about. It's not a normal dashboard. It's basically a live feed. On top of it, we applied the AI, artificial intelligence, and government, different sectors are getting the exact information. करेक्ट. जस्ट इमेजिन ऐसे इस तरह के डैशबोर्ड इंडिया में जो फेस्टिवल, इंडिया में एवरी मंथ वी हैव सम फेस्टिवल एंड ऑल, एवरी मंथ और सेकंड वी हैव सम गैदरिंग्स लाइक दिस. सो इस तरह के डैशबोर्ड क्रूशियल मार्केट्स में बहुत जरूरी है, राइट? So you can understand कितना important है इस टाइप का डैशबोर्ड. So this is one of its own kind under the Vajra Smart City Solutions. Correct? Yes, Smart City dashboard. Next, we are going into security, visitor management. Visitor management not only in any complex, yeah, school or office. We are talking about visitor management in country level. So जैसे ही country में कोई visitor आता है through train, through your what do you call through your airport, right? International airport, we will be having this security and visitor management, Vajra security solution and Vajra visitor management applied at the entry point of the country, of any country, correct? In this case Malaysia. So this is our second phase which we are going to start by January end, right? So this is the small example or small idea, correct, of what we do basically. So it's not like a regular software company. We are the solutioning company. Yes, we are not the big tycoons or like your NIT, HCL, Wipro, right? But we are solutioning company and good startup company. We have started from past 4 years, and now we have reached to all government sectors, government departments of Malaysia and Singapore, राइट? सो जो भी प्रोजेक्ट हमारे पास आ रहे हैं वो सारे स्टेट अवे सिंगापुर या मलेशियन गवर्नमेंट के थ्रू आ रहे हैं, उनसे साइंड होके आ रहे हैं, राइट? सो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग वी आर डूइंग. सेम थिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हमारा वज्र सोल्यूशन आ रहा है, करेक्ट? सो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, या इस तरह के प्रोजेक्ट्स, किस तरह के प्रोजेक्ट्स में हम डील कर रहे हैं, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू बिल्ड. फॉर दैट वी नीड मैन पावर. ओके, सो एक आइडिया तो है कि we go into the market and hire people from there and start doing it, right? We hire people from market and start making the application. Just give me a minute. Yeah. Second option is what Ravi sir has given to me, that why can't we use, I will use this word, use, why can't we use the students in India or Indian university or colleges, और उनको जो है उनके इंटर्नशिप प्रोग्राम के अकॉर्डिंग टू अंडर द इंटर्नशिप प्रोग्राम विल पुट देम इनटू आवर प्रोजेक्ट्स डायरेक्टली. ऑफ कोर्स स्टार्टिंग की केटी देकर, केटी मींस नॉलेज ट्रांसफर, स्टार्टिंग का 1 week or 2 week we give them some KT, some knowledge transfer, about the technologies, latest technologies like Mhm. mean stack, right? Like mean stack. अब मीन स्टैक क्या है, आई एम गोइंग टू टेल यू इन नेक्स्ट 2 minutes. तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज में या कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में जिनमें हम वर्क करते हैं, उन पे एक स्टार्टिंग का 1 week 2 week उन स्टूडेंट्स को बेसिक इन्फॉर्मेशन देके लेट देम डायरेक्टली पुट ऑन द प्रोजेक्ट. सो correct, so that is the whole idea about this webinar and the program which we are going to present in front of you now. Okay. सो अब ये तो था एक बैकग्राउंड, राइट? एक बैकग्राउंड चेक कि क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं हम, क्यों क्या कर रहे हैं हम, राइट? व्हाट वी आर प्रेजेंटिंग, बेसिकली व्हाट वी आर ऑफरिंग यू फ्रॉम आवर साइड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ इज, मुझे क्यों करना है, व्हाई आई शुड डू दैट, व्हाई आई शुड डू द इंटर्नशिप, what is internship first of all, why I should do that, and then how I should be doing it, correct? So let me take next 10 minutes and explain you what is internship, why you should do that, correct, and how you should be doing it with us, correct, right? Okay. uh, Now first of all, आप लोगों को पता है internship क्या होती है? First of all, internship, any idea?
team? So being an intern in a corporate office, Mm-hmm. uh, as a trainee, Mm-hmm. uh, Mm-hmm. on a real life Mm-hmm. practice Okay. of the professional studies जो भी हम करें Okay. Okay. for a So particular period of time. for a particular period of time. Okay. Okay. Anyone else? और कोई ये multiple dots जिनकी हैं, please tell me what's your name, please rename yourself. ये SW5TG, please rename yourself, otherwise I have to remove you from the group. And this trip, let me just put it in the chat, who is this guy? Okay, so anyone else? Abhishek, Del, Gurpreet, Harikrishan, Himanshu, Manav, Mariam, Shivam, sorry, Shubham, Shweta. Anyone? Internship क्या होती है? What is internship? यार आप लोग इंटर्नशिप सुनते हो, आपने सुना भी होगा, बहुत सारे लोग इंटर्नशिप करते हैं, कंपनीज में जाते हैं, काम करते हैं। क्यों जाते हैं, क्यों करते हैं, क्या होती है इंटर्नशिप? एनी आइडिया किसी को भी? इट्स ओके, प्लीज स्पीक, मेक The this session sir, interactive. Yeah, yes, the Gurpreet. position of the position of a student, yeah, training, yeah, who works in organization sometimes Mm-hmm. the without paying order to gain a work experience satisfy Mm-hmm. ऐसा Mm-hmm. कुछ होता Mm-hmm. है। हाँ, ओके, सो आई एम नॉट श्योर कि तुम लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन इंटर्नशिप के बारे में पता है या नहीं. सो लेट मी जस्ट गिव यू ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द इंटर्नशिप, व्हाट एग्जैक्टली इंटर्नशिप इज. ओके, सो श्वेता इज स्पीकिंग, वर्क विद प्रोफेशनल ऑन अ प्रोजेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. एब्सोल्युटली करेक्ट, bang on. Work with professional on a project for a particular period of time. Let me change a little bit. Work on a client project, not the demo project, not prototype, not the sample project, client project, right? Working with the professional, okay, with the professional on a client project for a particular period of time, that is called internship. Absolutely correct, absolutely correct. तो आप क्या करते हो? आप एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में जब जाते हो, किसी कंपनी में जाते हो, तो व्हेन यू एंटर इनटू कंपनी, यू फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क विद प्रोफेशनल्स. आप प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हो. प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी वर्किंग है, तो उससे क्या फायदा होता है? व्हाई यू डू इंटर्नशिप, आई टेक इट आफ्टर दिस. सो आप प्रोफेशनल्स के साथ, वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ आप काम करते हो. यू वर्क विद वर्किंग प्रोफेशनल्स, यू वर्क ऑन द क्लाइंट प्रोजेक्ट, राइट? क्लाइंट प्रोजेक्ट मतलब जो 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 क्लाइंट है, एग्जैक्टली जो जो कंपनी का क्लाइंट है, आप उसके प्रोजेक्ट पे वर्क करते हो. करेक्ट, यू इंटरेक्ट विद क्लाइंट बेसिकली सम टाइम. करेक्ट, उसकी रिक्वायरमेंट्स को यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, right? And this whole exercise you do it for a particular period of time. एक particular period of time के लिए आप ये काम करते हो. You don't do it for entire life, or let's say 1 year, or many years. You do it for some months, right? Max is 6 months, as we all know. Correct. So this is internship. Is it clear to all of you? This is internship. Working with professionals on the client project for a particular period of time is called internship. Is it clear to all of you? Internship का meaning clear है सबको? I guess yes. Okay. Okay. So okay. So सर डैशबोर्ड यू वर एक्सप्लेनिंग सर, थोड़ा सा और बताइए. dashboard क्या? उसमें हम Dashboard में क्या? we were doing the surveillance kind of a thing और क्या. Yes. Yes. सर Yes. स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड के बारे में क्या है? मैं स्मार्ट सिटी का थोड़ी देर बाद बताऊं, पहले इंटर्नशिप का 2 मिनट में खत्म करूं. लेट मी फिनिश दिस वन, यस and then I can take your query at the end, right? Then you can ask me all the questions whatever you want, right? Let me just finish the process, because others are also there who might not be even knowing what is internship and why you should do that, right? So अब next I straight away come to the point, why we need internship. Any idea? हमें क्यों करनी चाहिए इंटर्नशिप? बीइंग अ आईटी स्टूडेंट, तुम बीटेक में ऑलरेडी काम करो, तुम इंटर्नशिप की क्या जरूरत है? व्हाई यू नीड इट? बी प्रिसाइज नाउ, राइट? क्यों चाहिए इंटर्नशिप तुम्हारे को? व्हाई यू नीड इंटर्नशिप? यू ऑलरेडी वर्किंग इन, यू सॉरी, यू ऑलरेडी हैविंग अ कोर्स ऑफ बीटेक जिसमें हर तरह की टेक्नोलॉजी तुम पढ़ते हो, कोर्स तुम पढ़ते हो इन शॉर्ट. एक्चुअली तुम्हें सर इंटर्नशिप क्यों वैसे चाहिए?
स्टडी कर रहे होते हैं तो हम बेसिक पे काम कर रहे होते हैं, और Correct. उस समय जब हम कभी कंपनी में जाते हैं तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, क्या मार्केट में है, उससे मैच करते हैं अपनी नॉलेज के साथ, Correct. Okay, good, very good, very impressive. जिससे कि हमें कनेक्ट कर पाए, मर्ज कर पाए चीजें, क्योंकि Absolutely. मर्जिंग प्रोसेस पे काम करता है, Okay. अपनी बेसिक सिर्फ नॉलेज को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करें। एब्सोल्युटली सिर्फ टेक्नोलॉजी गेन ही होता है और कुछ भी होता है, मतलब यू गेट टू नो अदर एक्सपीरियंस थिंग। गेन होता है, काम कैसे करें आगे। Okay. Okay. Can I ask the same thing to, let's say, Himanshu, Hari Krishna, right? Who else is there? Shiv Om, Shubham, Shweta. To apply the theory we have gathered Mhm. to be a productive Mhm. uh, Okay, I understood what you're saying. So apply the theory into the practical and put something working, right? Okay, मैं इसको pointers में explain करता हूँ बहुत जल्दी से, इसमें ज़्यादा time नहीं लगेगा, but it's very important. Okay, please understand, please focus why you need internship. Correct. First of all, you are into the college, so you don't know what is going on in the market. So first thing, by doing internship, what happens is you enter into the company, you get to know what is the actual IT environment or actual company environment क्या होता है, company में काम कैसे होता है, कैसे working कैसे होती है. So first thing what you get is the company environment. Second, what you see or learn is working with professionals कैसे काम करते हैं, किस तरह से उनको जो है टाइम मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट देखना होता है, राइट. So working with professionals. Third thing is you get to know the latest technologies, कि भाई हम तो पढ़ रहे थे Oracle for example 5 और यहाँ काम हो रहा है Oracle 9 पर या 10 पर या 11 पर, करेक्ट. हम पढ़ रहे थे MySQL, PHP, .NET, Java, यहाँ काम हो रहा है मीन स्टैक पे, मर्न स्टैक पे, Vue.js पे, React Native पे, Flutter पे, करेक्ट, राइट. सो टेक्नोलॉजी गैप जो है वो फुलफिल होता है, जो टेक्नोलॉजी का गैप है, क्योंकि इन द कॉलेज यू स्टडी ओनली द कॉलेज करिकुलम और यूनिवर्सिटी करिकुलम, करेक्ट. But when you enter into company, the third thing what I said is you get the information about the latest technology. आप latest technology आपको पता लगती है मार्केट में क्या चल रहा है. फोर्थ, जो आपके पास आपके पास जो बेनिफिट होता है, जो आपको इसमें मिलता है इंटर्नशिप में, दैट इज कॉन्फिडेंस. बिकॉज जब आप काम करना शुरू करते हो तो आपको आते हैं एरर्स. what you get to know is errors. तो जब एरर्स आते हैं, you get yourself dirty with errors, तो आप उस एरर्स को रिजॉल्व करने के लिए you learn, you study, you search so many things. और जब वो चीजें आप सर्च करते हो, वो सब चीजें आप जो है देखते हो गूगल पे या अपने अपने कलीग से जो ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है उनसे पूछते हो, सो आपको नॉलेज मिलती है, उस नॉलेज से आपको मिलता है कॉन्फिडेंस. सो फोर्थ पॉइंट इज नॉलेज एंड फिफ्थ पॉइंट इज कॉन्फिडेंस. जब आप एरर्स के साथ डील करते हो तो आपको 2 पॉइंट एक साथ मिलते हैं, वन इज नॉलेज, सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंस. सो ये हो गया फिफ्थ पॉइंट, कॉन्फिडेंस, नॉलेज, कॉन्फिडेंस, राइट. सेवेंथ इज व्हाट यू गेट इज एक्सपीरियंस, कि सिचुएशन को मैच्योरिटी, इन शॉर्ट मैच्योरिटी, आपको एक्सपीरियंस मिलता है. तभी हम कहते हैं ना वर्किंग एक्सपीरियंस. हम ये टर्म यूज क्यों करते हैं, व्हाई वी यूज दिस टर्म वर्किंग एक्सपीरियंस. वर्किंग एक्सपीरियंस मींस जब आप काम करते हो, चाहे एज एन इंटर्न नहीं कर रहे हो, आपको एक एक्सपीरियंस मिलता है, करेक्ट. यू गेट एन एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली काम होता कैसे है. आपको एक्सपीरियंस मिलता है डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे वर्क करने का, एक्सपीरियंस मिलता है डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ काम करने का, एक्सपीरियंस मिलता है क्लाइंट को हैंडल करने का. I mean, I'm 100% sure you have not, seen client, how client talk to, I mean, the company or the resources, right? Client के साथ interaction कैसे होता है, right? Client interaction में कैसे बात करते हैं, किस तरह से अपने आप को put up करते हैं, how we take requirements from client, how we basically satisfy, the client's need by making sure whatever he's asking, the client is asking, we will fulfill that requirement, correct. जैसे क्लाइंट ने बोला मुझे मुझे नॉर्मल डैशबोर्ड नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल क्लाइंट बोलता है मुझे नॉर्मल डैशबोर्ड नहीं चाहिए, मुझे स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए, आई नीड पाई चार्ट्स, आई नीड बार ग्राफ्स, आई नीड लाइन डायग्राम्स, करेक्ट. तब क्या करोगे आप, ये क्लाइंट की नीड है, व्हाट यू विल डू, यू विल सर्च, यू विल स्टडी, यू विल लर्न, करेक्ट, और करेक्ट, और उसको अप्लाई करोगे. सो ये सब चीजें आपको आपको इंटर्नशिप मिलती है. एंड एट द एंड व्हाट यू बिकम इज, यू बिकम अ स्किल्ड रिसोर्स. आप क्या बनते हो, यू बिकम अ skilled resource, not a fresher after internship. That is why your college or university deliberately, intentionally put up this internship in your program. Internship इसीलिए रखा गया है कि इसको करने के बाद अगर आप सीरियसली कहीं इंटर्नशिप करते हो, either paid or not paid, whatever it is,
कहीं भी अगर इंटर्नशिप सीरियसली करते हो, so you will no longer an fresher. You are no longer a fresher. Now after internship you have to be a skilled resource. You have to be a skilled resource. Correct? अगर अच्छी जगह से इंटर्नशिप करते हो जहां पर अच्छे ट्रिकी एप्लीकेशंस पे आपको काम करने को मिले, then you will be a next level guy or girl. Correct? तो इंटर्नशिप इसलिए इंपॉर्टेंट होता है. So now you understood what is the importance of internship. Is it clear to all of you? क्लियर हुआ इंटर्नशिप क्यों जरूरी है? टीम, is it clear to all of you? You can put in the chat also. You don't need to Yes, speak sir. if you don't want. आप चैट पे भी लिख सकते हो. Did you understand कि इंटर्नशिप का मेन बेनिफिट क्या है? ये उसका बेनिफिट है. करेक्ट. और इन सब के बाद when you are skilled product, when you are skilled resource, तो उसके बाद the next change what you get in your life is now you are ready to face interviews. This is the best part about the internship. आप में से बहुत लोग, I'm telling you this fact and I guess you all will agree with me. आपने देखा होगा आपके कॉलेज में, क्लास में, राइट, योर कलीग्स और योर alumni, right, your friends, your cousins who are in the college. तो वो लोग, उनमें पोटेंशियल बहुत होता है, दे आर लाइक जीनियस, राइट. बट होता क्या है, when it comes to interview or explaining or presenting, correct, वहां वो they will fall short of the confidence. Am I right or am I right? Tell me. जावा पूरा पूरा अच्छे से पढ़ा होता है, डॉटेड पूरा अच्छे से पढ़ा होता है, कोडिंग अच्छे से पढ़ी होती है, सी प्लस प्लस के हर हर टॉपिक पता होता है, राइट. दे नो ईच एंड एवरीथिंग, एवरी इंटीग्रिटी ऑफ द बुक्स पूरी चाटी हुई होती है इन शॉर्ट, करेक्ट. बट when it comes to interview, when it comes to presenting their self confidently in front of an interviewer कि हाँ मैंने किया हुआ है, I can do that, correct. Even dummy projects भी बनाए होते हैं, even then they are not able to explain their self, correct. Agree? नहीं हो पाता है, right. So the main reason is you are still a fresher. You are not a skilled resource. जब आप skilled resource होते हो, which is through internship when you become a skilled resource, क्या होता है, I mean you all will agree with me on this note also. जब आप एक इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाओगे तो आप 6 महीने प्रोफेशनल के साथ काम करोगे, हर वक्त क्लाइंट के साथ इंटरेक्ट करोगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स पे वर्क करोगे, एरर्स आए हैं उनको रिजॉल्व करोगे, प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे, प्रोजेक्ट में छोटे छोटे टास्क होते हैं उनको पिक करोगे, उन टास्क को कंप्लीट करके अपने मैनेजर को रिपोर्ट करोगे, उसको रिव्यू कराओगे, वो मेन क्लाइंट साइट पे क्लाइंट एप्लीकेशन में ऐड होगा, क्लाइंट उस पर रिमार्क्स देगा, क्लाइंट से रिमार्क मिलने के बाद तुम फिर उसमें कुछ चेंज करोगे, फिर उसे पुश बैक करोगे क्लाइंट साइट पर, राइट. सो ये पूरा प्रोसेस जब आप पूरा 6 मंथ्स तक करते हो, सो डोंट यू थिंक यू बिकेम एन आईटी गाय? व्हाट डू यू से? यस और नो? तुम्हें लगता है 6 महीने जब तुम ये रेगुलरली ये काम करोगे, सो यू विल बिकम अ स्किल्ड रिसोर्स? यस और नो? जैसे बाकी वर्किंग प्रोफेशनल है, यू विल आल्सो बी द सेम. Say yes only if you agree with me. Otherwise, say no. Yes, sir. Yes, sir. Don't Yes. don't put say just for the sake of I'm asking. You can put no also if you don't agree. 6 महीने अगर 6 months if you continuously work on the same thing, daily client interaction, daily काम, daily we call it check in check out. Check in मतलब मैं कोड पे काम कर रहा हूँ, सॉरी चेक आउट मतलब मैं कोड पे काम कर रहा हूँ, चेक इन मतलब मैंने अपना कोड पुश कर दिया. सो डेली चेक इन चेकआउट करोगे, अगेन क्लाइंट के साथ रिव्यू होगा, मीटिंग्स होगी, क्लाइंट मीटिंग्स होगी, मैनेजर के साथ मीटिंग होगी, टीम डिस्कशन होगा, करेक्ट. तो इन सब में क्या होगा, अगर तुम 2 मिनट के लिए अपने आप को ही न्यूट्रली, अपने आप को ही इस प्रोसेस में देखो बाहर से, इफ यू ऑब्जर्व योरसेल्फ कि दिस इज हैपनिंग टू यू, सो व्हाट यू विल सी इज डेली तुम्हारा कन्वर्सेशन बढ़ रहा है, डेली तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग बढ़ रही है, राइट. यू आर इंप्रूविंग योर पब्लिक स्पीकिंग, यू आर इंप्रूविंग योर जेडी, यू आर इंप्रूविंग योर पर्सनालिटी, यू आर इंप्रूविंग योर स्पीकिंग skills, right. You are improving how you should talk to your seniors, juniors. You're getting the information that how you should handle the client in a real time manner, correct. लाइव क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है. अभी तक क्या होता है, तुमने सुना होगा क्लाइंट के साथ कॉल में बात हो रही है या क्लाइंट ने मेल करा है. अभी तुम जब कंपनी में काम करोगे तो क्या होता है, तुम डायरेक्टली क्लाइंट से हैंडल करते हो. सम टाइम द होल कॉल इज डिपेंड्स अपॉन यू, क्योंकि तुमने कोई चीज ढूंढी है, तो तुमने कोई पीओसी की है, तुमने कोई प्रोटोटाइप बनाया है, एंड यू नीड टू प्रेजेंट दैट प्रोटोटाइप टू क्लाइंट. तुमने कोई एआई में सपोज प्रोटोटाइप बनाया, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन का कोई ऐप बनाया, और तुम्हें वो क्लाइंट को एक्सप्लेन करना है, तो तुम्हारा मैनेजर कॉल को हैंडल नहीं करेगा. यू नीड टू प्रेजेंट दैट इट टू क्लाइंट, राइट.
फिर डेली तुमको तुमको एरर्स आएंगे, तुम उनको रिजॉल्व करोगे। अगेन तुम अपने कलीग से इंटरेक्शन करोगे, ये सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये ऐसे नहीं हो रहा है, या वैसे नहीं हो रहा। कहने का मतलब है कि डेली तुम एक ही काम बार 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 बार, जो आईटी में होता है, एक ही काम नहीं, मल्टीपल वर्क, द सेट ऑफ वर्क you will do on the daily basis again and again for 6 hours, 7 or 8 hours. So now you tell me, now again you tell me, will you not be a expert or skilled, not expert, skilled resource? Yes or no? Yes, sir. Correct, you will be a skilled resource, isn't it? At least आप freshers नहीं रहोगे। तो जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम करके, अच्छे ट्रिकी प्रोजेक्ट्स पे काम करके, व्हेन यू गो इनटू द मार्केट, अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट एंड आई विल क्लोज दिस मैटर। तो अब जब एक स्किल्ड रिसोर्स की तरह, एक कॉन्फिडेंट रिसोर्स की तरह, नाउ व्हेन यू आफ्टर इंटर्नशिप, नाउ व्हेन यू अटेंड एन इंटरव्यू, और इंटरव्यूअर आपसे ये पूछता है कि ओके टेल मी, यू नो देयर इज अ सिचुएशन दैट क्लाइंट यू नो इज आस्किंग समथिंग टू यू, हाउ यू विल यू नो हैंडल दैट सिचुएशन? सो डोंट यू थिंक यू विल बी एबल टू आंसर इट? यस और नो? Yes, sir. ओके, सेकंड सिनेरियो, इंटरव्यूअर इज आस्किंग टू यू कि ये तुमने प्रोजेक्ट में ये काम किया है, ये चीजें कैसे हैंडल की, तुमने लॉगिन कैसे हैंडल किया, तुमने रजिस्ट्रेशन कैसे हैंडल किया, तुमने एपीआई कैसे हैंडल किया, तुमने डीबी कैसे हैंडल किया है। जब तुमने 6 महीने, यू हैव वर्क यू वर्क ब्लडी 6 मंथ्स ऑन वन सिंगल प्रोजेक्ट, अगर वो तुमसे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांगेगा या पूछेगा, ट्रिकी क्वेश्चंस पूछेगा, डोंट यू थिंक यू विल बी एबल टू आंसर दोस क्वेश्चंस बिकॉज यू एक्चुअली वर्क ऑन द प्रोजेक्ट? यस और नो? Yes, sir. No, I need to know yes or no from all of you. You can put it in the chat also, please. Correct? Right? तो तुम डेली इंटरेक्ट करोगे, तो वो कुछ भी तुमसे अगर पूछेंगे, राइट, कुछ भी पूछेंगे तुमसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, एंड इनफैक्ट यू विल बी वेटिंग कि यार ये मुझसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे, ये मुझसे इंटरव्यू मुझसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड पूछे, बिकॉज यू हैव वर्कड इन लास्ट 6 मंथ्स ऑन द प्रोजेक्ट। सो तुमसे कुछ भी पूछेगा, जैसे स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड है, स्मार्ट सिटी डैशबोर्ड में यू नो इमीडिएटली अलर्ट्स के लिए तुमने क्या यूज किया? सिग्नल आर यूज किया। इफ इंटरव्यूअर विल आस्क यू सिग्नल आर कैसे इंप्लीमेंट किया, तुम तो पूरा कोड बता दोगे उसको कि दिस इज हाउ आई इंप्लीमेंटेड सिग्नल आर। तुमने फ्रंट एंड किस में बनाया? मैंने एंग्लो में बनाया। कैसे बनाया? एंग्लो में सर्विसेज कैसे बनती है? ऐसे ऐसे बनती है। एंग्लो में डायरेक्टिव कैसे बनता है? ऐसे ऐसे बनता है। तुमने एपीआई किस में बनाई है? एक्सप्रेस जेएस में बनाई है सर। एक्सप्रेस जेएस में बनाई। how you handle you know the get post put delete calls, you will you know immediately you know you will answer कि get इसलिए होता है, put इसलिए होता है, post इसलिए होता है। तुम API एक्सप्लेन कर दोगे। क्लाइंट इंटरव्यू तुमसे पूछेगा how you handle the database, करेक्ट? बिकॉज तुमने MongoDB पे काम किया होगा, तो तुम पूरा का पूरा डेटाबेस एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मैंने डेटाबेस बनाया है, इस तरह से जेसन ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है, इस तरह से हम पिक कर रहे हैं। What I'm trying to portrait in front of you is, what I'm trying to tell you is, अगर आप internship program properly करते हो, so you will become a skilled resource. Once you become a skilled resource, you are absolutely ready and eligible to go into the market and grab a job. तो तुम अब बताओ कि don't you think you have a very good chance to you know enter into the company just after doing the internship? इसीलिए most of the internship में क्या होता है, अगर आप promising होते हो, अगर तुमने सुना भी होगा, I mean you have seen it and heard it also, कि जो internship में अच्छा परफॉर्म करते हैं most of the time वही कंपनी उनको कंज्यूम कर लेती है, absorb कर लेती है in on their own payroll. Yes or no? सुना है? जो अच्छे इंटर्न्स होते हैं उनको वहीं पर कंपनी अब्सॉर्ब कर देती है, बिकॉज कंपनी 6 महीने उनके साथ काम किया है, कंपनी हैव स्पेंड 6 मंथ, कंपनी आल्सो इन्वेस्टेड 6 मंथ्स इन यू, करेक्ट? एंड देन कंपनी यू नो absorb those people. So the same kind of opportunity I brought it for you. So this is how part. So I showed you I told you what is internship, why internship, and then how internship. So this is what I'm you know offering you. If you are interested in working in these cutting edge technologies and project like smart city dashboard, security solutions, visitor management systems, right, which will be at let's say countrywide level. So if you are interested in working in such kind of project, then I'm offering you this internship, and I'm taking a guarantee that people who are actually hardworking and prove their self, we will absorb them into our own organization, correct, or our client partners, right? जो हमारे पार्टनर्स है, पार्टनर आईटी कंपनीज हैं, या हमारी जो है हम उनको अपनी कंपनी में या अपनी पार्टनर आईटी कंपनीज में will absorb them. Okay, people who are
let's say people who show the promise, basically, who are committed, who are basically hardworking, correct, confident people, right? Uh, जो जो people who has zeal and hunger to learn more. तो obviously उनके लिए मतलब ये कोई नए वर्ड्स नहीं है what I'm using, correct? You all know, आप किसी इंटर्नशिप में जाते हो या किसी भी फील्ड में जाते हो, इफ यू हैव दैट zeal, if you have that hunger to do more, to do better, right, to learn more, ऑटोमेटिकली उनके लिए आगे जो है पाइपलाइन खुल जाती है. आई गेस दिस इज समथिंग which is not like first time you are hearing from someone. I mean, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, किसी और ने आपको नहीं बताई होगी, और ये कोई ऐसी चीज भी नहीं है कि you have not seen it. You have seen plenty of example in your life by now कि यार वो बहुत हार्ड वर्किंग था और वो उस कंपनी में प्लेस हो गया, या वो बहुत हार्ड वर्किंग था, सी ही हैज सेट अप हिज ओन बिजनेस, राइट, या वो इस बिजनेस में एंटर हुआ, स्टार्टिंग के कुछ टाइम स्ट्रगल हुआ, एंड देन ही सक्सीडेड लाइक एनीथिंग. एम आई राइट और एम आई राइट? टेल मी. करेक्ट? ऐसे होता है. तो ये कोई मैं नई चीज आपको नहीं बता रहा हूँ कि यू शो हार्ड वर्क, यू शो कमिटमेंट, एंड यू विल बी प्लेस्ड इन द सेम कंपनी. इट इज बाउंड टू हैपन. अगर आप वो एटीट्यूड, वो कॉन्फिडेंस शो करोगे, so you will get that success. I mean, there is no one who can stop anything from you. Okay, so again, as I said, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैंने फर्स्ट टाइम बोली है, पहले कभी हुई नहीं है, right? So you all know this fact, you all know this as a fact, right? Correct. So Ravi sir, no, not Ravi sir, we have Ravi Pandey. Do we have Ravi Pandey? I specifically asked him. He joined our internship program 8 months back. 8 months back. Ravi sir, he joined in May or May batch. May batch. वाले batch. Yeah, he was in May batch, and on 4th of January he got an offer letter from our company. You won't believe, he is also a part of that Vajra security solution, the project which we have started. उसने उस पे work किया, and he a week ago, not week ago, 10 days back, he has started working in Vajra asset management as well, right? Our one more smart project, smart city project. So I was waiting for him. I don't know if there's he's from Haldwani, and in these 8 months, 7 months, 9 months, whatever month these are, 6 months, 7 months, right? जब सब लोग कोविड चिल्ला रहे थे, right, when everyone was saying it's COVID, we cannot study, we cannot do this, we cannot do that, people like Ravi and others, unfortunately they didn't get the offer this time. They will be getting it in the next lot, right? Correct. All these bunch of 5-6 people, they have worked on different projects, including mobile apps, correct, and that too online. इन लोगों ने मोबाइल एप्स पे डिफरेंट वजरा सॉल्यूशंस प्रोडक्ट पे वर्क किया है. हमारे जो इनिशियल प्रोडक्ट है उन पे काम किए, एंड दैट्स हाउ रवि आल्सो गॉट ऑफर, राइट? सर ये भी मेंशन कीजिए बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला है, क्योंकि फिर वो एक नेगेटिव सेंटिमेंट मार्केट में जाएगा. ओके. सो जिनको नहीं मिला है उनको इसलिए नहीं मिला है कि दे वर इनटू टू मेनी शिप्स. ओके, तो जिनको नहीं मिला वो और जगह भी इंटर्नशिप कर रहे थे, मतलब वो थोड़े ज्यादा स्मार्ट थे, तो वो और जगह भी इंटर्नशिप कर रहे थे, तो दे गॉट ऑफर फ्रॉम सम अदर कंपनीज, राइट? Let's say some got before we gave offer to them, they got offer another company by working under us. So they got, as I said, वो skilled बने. People who worked on the project, they became skilled, and once you become skilled, you, as I said, you don't need anyone to give you a job. You get job automatically, correct? You get success automatically. तो उन लोगों को तो जो ज्वाइन नहीं करा, उनको they got better offer than us from different companies. Ghanshyam based from BTech batch. He joined TCS. He's from Amrapali, Halwani. So of course, if someone join, someone get offers from TCS, right? So ours is solution based company. But trust me, the best part about the solution based company is, okay, let me finish this one first. So एक बार आप skilled हो जाते हो तो आपको जॉब मांगने की जरूरत नहीं है. You get job automatically. You get offers from different sources, I mean to say. Correct. So Ravi got offer from us. He accepted. Someone else got offer from
from some other companies like TCS. Ghansham, he got from TCS, so he opted that. That is why he didn't get an offer, right? I mean, that is why he didn't join us. So that is the story basically. Ravi sir, you wanted to add anything in that? No. The thing is, it is paramount to first learn. जब तक आप पहले लर्न नहीं करेंगे, तब तक आप किसी भी तरह के अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में सक्षम नहीं होंगे. Very first quality Absolutely. is learning, right? So this has to be there. जब तक ये learning नहीं होगी, वो एक्चुअल प्रैक्टिकल जर्नी नहीं होगी, तो आगे जो भी आप सपने देख रहे हो आईटी इंडस्ट्री में पहुंचने पर, वो उतनी तेजी से पूरे नहीं होंगे. अच्छा, एक और भी चीज है सर, बच्चे कहते हैं कि हम फ्री इंटर्नशिप करेंगे. इंटर्नशिप में तो बहुत लोगों को पैसे मिलते हैं, आप तो पैसे मांग रहे हो और आप इतने सारे पैसे मांग रहे हो, राइट? और आप क्या एक्स्ट्रा कराओगे? आपका भी तो इंस्टीट्यूट ही है, इंस्टीट्यूट में भी तो हम पैसे देते हैं, वो भी कुछ नहीं कराते, आप भी कुछ नहीं कराओगे. lot of inhibitions are there in the minds of students. Man, How they do are we not. differentiate ourselves? How do we differentiate ourselves? They are not. और वो फ्री वाले कीड़े से हम कैसे निकले बाहर कि हमें तो फ्री में मिल रही है, हम तो फ्री करेंगे, हम तो पेड वाली नहीं करेंगे. ये स्टूडेंट्स गलत भी नहीं है. आई मीन देयर आर लॉट ऑफ फ्रॉड इन द मार्केट. ऑफ कोर्स ये अपनी जगह ठीक है, गलत भी नहीं है अपनी जगह कि we are having so many places where we are getting free. Okay, give me just 2 minutes, okay, and I explain why. Okay, just give me 2 minutes and listen to me very patiently. If you agree, then only you say yes. Okay, सबसे पहले इंस्टीट्यूट पर आते हैं. जितने भी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, राइट, विच बेसिकली डू ऑल दीज थिंग्स. तो अगर आपने यहाँ पर किसी अपने सीनियर या कलीग या किसी भी रिसोर्स सुना हो, सो इन दीज इंस्टीट्यूट्स दे डोंट वर्क ऑन द क्लाइंट प्रोजेक्ट, दे वर्क ऑन द डमी प्रोजेक्ट. डमी प्रोजेक्ट में ऑलरेडी कोड बना हुआ होता है, करेक्ट. उस कोड को बार बार बैच आफ्टर नदर उसको रन किया जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल डॉटनेट बना है तो डॉटनेट में ही चल रहा है वही प्रोजेक्ट. डॉटनेट में हर बैच में वही डमी प्रोजेक्ट पढ़ा रहे हैं, नॉट सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं. सेम थिंग अगर वो पीएचपी बना है तो सेम पीएचपी. आजकल ये मीन चल रहा है, मीन लेटेस्ट है, करेक्ट. तो कहीं से मीन का बैच स्टार्ट करते हैं और एक प्रोजेक्ट बनाते हैं बना हुआ मीन में, और उसी को हर बैच आफ्टर बैच करते हैं. I handle Edureka's account. I guess you all know Edureka, right? Edureka, तुम ad सुनते होंगे, देखते होंगे Facebook पे, Edureka. So 5 years I run, AngularJS, Angular, mean stack batch for Edureka. और मैंने भी जो corporates को है पढ़ाया है. Same product, same project, बार बार batch after another. There is no innovation, there is no latest thing in that. So उसी को बार बार कराया है. So institute में जो होता है उसे बोलते हैं पढ़ाना, study. Correct, like a course. When you enter into the internship program, जब आप एक कंपनी में एंटर करते हो तो कंपनी में आपको मिलते हैं क्लाइंट प्रोजेक्ट. So that is the first difference between these two, doing it from the institutes and doing it from the company. Correct. When you enter into a company, we are also going to put you into the company only. आप एक कंपनी सेटअप में ही आओगे, कंपनी में ही आओगे, कंपनी के ही एम्प्लॉइज के साथ काम करोगे, कंपनी के ही प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे. And if you show the promise, right? So yes, Ravi sir, I'm explaining. If you show the promise, the company will take you on their role for 100% sure, right? If you show the promise, correct. Second question होता है कि फ्री क्यों नहीं है, पेड क्यों है. ओके, जो फ्री इंटर्नशिप्स होती हैं, उन फ्री इंटर्नशिप्स में अगेन कंपनी अपने डमी प्रोजेक्ट्स या किसी भी तरह के पुराने प्रोजेक्ट्स पे आपको लगा देती हैं, क्योंकि कंपनी को दिखाना होता है कि हमें जो है इतने इंटर्न्स हमने इस बार ट्रेन करे, राइट. आगे फंडिंग लेनी होती है, प्रोजेक्ट्स उठाने होते हैं, उनको भी अपना नंबर दिखाना होता है ना कि वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ 100 पीपल वेयर 50 पीपल आर लेट्स से 60% क्रॉस, 60% प्लस. तुमने कभी सोचा नहीं कि ये इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस ये 100, 50, 200 एक साथ कैसे उठा लेती हैं? क्यों उठाती हैं? कभी सोचा है? वैसे कहते हैं मार्केट में जॉब नहीं है, और वैसे ये टीसीएस, विप्रो, इंटर्नशिप, सर्विस बेस्ड कंपनी ये इमीडिएटली बल्क हायरिंग करती हैं. कभी सुना है, सोचा है क्यों बल्क हायरिंग करती हैं? They do bulk hiring because they need to show it to the client that we have 50 resources, BTechs, which is 60 plus throughout or 70 plus throughout. Based on that, they bid in international market and they get the project. Correct? तो वो तुम्हारे बेस पे नंबर गेम खेलती हैं. Correct? Now I come to paid. Why paid? So
इफ यू नोटिस, जब आप एक कंपनी प्रोमाइसेस में आओगे, कंपनी के रिसोर्सेज यूज करोगे, रिसोर्सेज इन टर्म्स ऑफ स्टैटिक एंड मूविंग बोथ, मतलब जो रिसोर्सेज हैं, जो मैनेजर है, टीम लीड है, राइट, जो ट्रेनर है, जो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है, आप उसका टाइम भी यूटिलाइज करोगे, प्लस यू आर यूजिंग द कंपनी रिसोर्सेज एज वेल, correct? So when you're going into the company and using the company resources, by all means, then obviously we need to bear the administrative cost, correct? Administrative cost. So what we are charging is only the administrative cost of 6 months, correct? 6 months of administrative cost. After that, people who show promise, basically people who are hardworking, जो अच्छे hardworking dynamic students हैं, correct, जो जिन्होंने अच्छा 6 महीने काम किया है, which people, students, resources who have proved themselves will get job immediately. There is no second thought about it, right? So जो आपने पे किया वो तो आप एक तरह से एंड में आप फर्स्ट सैलरी में ही रिकवर कर लोगे. Whatever you paid in the first salary itself, you will recover all that money in first salary itself, right? Not let's say in 6 months, 7 months. Immediately after joining, the first salary what you get, you will cover what you paid. तो आपके लिए तो विन विन सिचुएशन हुआ कि you have just paid the administrative cost and with the salary you covered. I mean, ROI अगर देखो तो 100% ROI है, isn't it? करेक्ट करेक्ट. रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट तो 100% है. कॉलेज की फीस की अगर बात करें सर, और वर्सेस हमारी जो फीस है उसकी बात करें, कॉलेज को बच्चों ने 4 साल दिए या 3 साल दिए, राइट? अगर मैं BCA और MCA दोनों मिला लूं तो 5 साल बच्चों ने अपने स्पेंड करे. और ऑन एन एवरेज अगर मैं सबसे कम कॉलेज फी लेकर चलता हूं तो 40-50 हजार फीस देते हैं एक साल में. BCA के 3 साल यानी कि 50,000 इंटू 3 1.5 लाख रुपए, और MCA के 2 साल 1 लाख रुपए, और तो 2.5 से 3 लाख रुपए मिनिमम खर्च कर रहे हैं. और रवि पांडे ग्राफिकेरा से है, ग्राफिकेरा की MCA की फीस, सिर्फ MCA की फीस उसकी 4 लाख रुपए है 2 साल की, राइट? उसके अलावा हॉस्टल अलग है. तो 5 लाख रुपए उसने अपनी पढ़ाई पे खर्च करे हैं सिर्फ MCA में. BCA में करे थे 2 लाख 2.5 लाख रुपए, तो 7 लाख रुपए उसने खर्च करे. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो 7 लाख वर्सेस वो 20,000 या 10,000 या 15,000 जो हम लोग अपने अलग अलग इंटर्नशिप्स के लिए चार्ज करते हैं, इट इज नथिंग. मोर ओवर, हमें ये भी समझना चाहिए कि जब आप किसी फ्री इंटर्नशिप में किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं तो वो अपना काम केवल कराते हैं आपसे, और आपको उसके बदले में कोई स्टाइपेंड भी नहीं मिलता अगले 6-7 महीनों तक. ठीक है, उसके बाद 90% बच्चे वहां से छोड़ के चले जाते हैं, और उनमें से जो बेस्ट होते हैं, राइट, उनको वो 10-15 हजार सैलरी पे स्टार्ट कराते हैं. और ये काम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां ज्यादा कराती हैं, जिनके पास अपने प्रोडक्ट में डेली कुछ यानी मैनुअल वर्क बहुत सारा होता है. तो उनको 6 महीने के लिए मैन पावर कैप्टिव मिल जाती है. आपको क्या लगता है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो? क्यों? क्योंकि वहां आपको, क्योंकि पता ही नहीं है ना आपको. बट नॉलेज क्या मिल रही है? नॉलेज इज नथिंग. नॉलेज क्या मिल रही है आपको? टेस्टिंग पे लगा दिया, फॉर एग्जांपल आपको टेस्टिंग पे लगा दिया, आपको छोटा सा ट्वीक करने के लिए बोल दिया, राइट? मतलब आपको काम जो मिल रहा है, दैट इज नॉट गिविंग यू, बिकॉज दैट इज व्हाई, सी, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड. सो अगर आपको कोई चीज फ्री मिल रही है तो उसके पीछे सामने वाले का कोई ना कोई उसमें मोटिव होगा. ऑब्वियसली यू नो दैट. अगेन, यू आर नॉट किड, which I mean that you cannot understand this fact. अगर तुमको फ्री काम करा रहे हैं तो ऑब्वियसली तुमको वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करा रहे होंगे, क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम नहीं करा रहे होंगे, या वो काम नहीं करा रहे होंगे जो जिसकी तुम्हारे को जरूरत है, which will make you a skilled resource. अगर तुम्हें एक ही चीज रोज मैनुअल वर्क तुम्हें करा रहे हैं तो what knowledge you will get from there? करेक्ट. As compared to, हाँ, go ahead सर. प्लीज. एक जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो आपका, जैसे मैं हर बार हर जगह आपका एग्जांपल देता हूं, कि आपकी अगर स्टार्ट अच्छी है और आपने स्टार्टिंग में खुद को लेटेस्ट और इनोवेटिव सॉल्यूशनिंग की तरफ फॉरवर्ड कर दिया है, तो जो करियर ग्राफ है वो आप तेजी से अचीव कर सकते हो. मैं सारे लोगों को बताता हूं कि अजय सर का 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद जो पैकेज है IT इंडस्ट्री में, वो लोगों का 30 साल 40 साल के एक्सपीरियंस पर होता है, राइट?
सर आप थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए कि इनका जो करियर ग्राफ होगा, अगर ये सही शुरुआत करते हैं Correct. तो आगे चल के इनको कितना रिटर्न उसका मिलने वाला है, स्पेशली सैलरीज के टर्म्स में या डेजिग्नेशन के टर्म्स में या प्रमोशंस के टर्म में. Correct. Citing your example, how you achieved it. Okay, so I also started the same way like others have started, but I did not do the mistake which everyone is doing. Let me just quickly show you my profile, and just give me 2 minutes to explain this. Okay, you have to give me 2 minutes. So if you see, I started my career like any other IT guy. एक backend technology पकड़ी ASP.NET, लोग Java पकड़ते हैं. मैं लकी था, मुझे इनिशियली ब्रेक मिल गया डॉटनेट में. नॉर्मली फ्रेशर्स को जॉब नहीं मिलती है डॉटनेट में. लेट मी टेल यू वन थिंग, यू गाइस आर बीटेक एमसीए, आई एम नॉट बीटेक एमसीए. यू नो हु आई एम, व्हाट इज माय एकेडमिक क्वालिफिकेशन? Correct. Another example. Any guess? मैं बता दूं? नहीं, इनको गेस करने दो. एनी गेस? मेरे पास कौन सी डिग्री हो सकती है तुम्हारे हिसाब से? कंप्यूटर साइंस. Far better. I am BBM, bachelor. Come on, bachelor in business management. Good. I am bachelor in business management. Now wait. What I did is I played a very smart trick. When I was in 2003 I joined, right? Yeah. So in 2002 and all, what I saw is कि ये CCA, CAICWA इन सब में बहुत career growth था. So I opted for BBM plus CA. Correct. Then very soon I understood that इसमें वो growth नहीं है. Correct. See, तुम्हें MTech, BTech, BCA में path नहीं मिल रहा. मैं एकदम दूसरा, I'm like alien for you guys. मैं दूसरी टेक्नोलॉजी से टोटली शिफ्ट होकर यहाँ पर आया था. राइट. सो सून आई अंडरस्टूड कि इसमें वो ग्रोथ नहीं है, वो जंप नहीं है. एक टाइम के बाद इसकी पोजीशन स्टैग्नेंट हो जाएगी, मतलब स्टैटिक हो जाएगी, स्टाक हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगा कुछ भी. तो मैं आईटी में आया बिकॉज इसमें ग्रोथ अच्छी होती है. अब क्या ग्रोथ होती है? आई एंटर्ड एज अ बैकएंड डेवलपर, जैसे सब होते हैं PHP या .NET या जावा, ऐसे एज अ बैकएंड डेवलपर आई ज्वाइन. Next 5 years I have worked on all kind of Windows and web based application, and I keep on updating myself into the latest version. इससे लेटेस्ट वर्जन में अपडेट करने से मुझे बेनिफिट क्या मिला? मुझे नए प्रोजेक्ट्स में एनरोलमेंट मिली. माय कंपनी कंसीडर्ड मी फॉर न्यू प्रोजेक्ट बिकॉज आई नो द न्यू टेक्नोलॉजी. राइट. बाय बीइंग इन द सेम कंपनी, उस एक ही कंपनी में रहकर अपने आप को टेक्नोलॉजी में अपग्रेड करता रहा, सो दैट आई गेट द चांस टू वर्क इन द न्यू प्रोजेक्ट. करेक्ट. जैसे ही टेक्नोलॉजी में शिफ्ट आया, जैसे ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज अब अराउंड 2012 जैसे नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आई, आई अपडेटेड माई सेल्फ इनटू न्यू टेक्नोलॉजी. The new technology name is AngularJS. उस टाइम पे AngularJS आया 2011 में, and I updated myself. And you know what I did? First thing, I was working in Delhi. मैं तब तक HCL NIT में काम कर चुका था. By 2011, I got offer from Bangalore, UST Global, Dell. On the payroll of UST Global, I got an offer from Dell. So वहां पर AngularJS, Bootstrap, responsive framework की requirement थी. Because I updated myself, see this one, because I updated myself into the newer technology, मैं AngularJS और बूटस्ट्रैप में अपने आप को अपडेट कर चुका था. राइट. आई इमीडिएटली गॉट एन ऑफर फ्रॉम बैंगलोर. ऑफ कोर्स मैंने नौकरी पे डाला एंड आई गॉट ऑफर फ्रॉम बैंगलोर. आई जॉइंड. मैं दिल्ली में ऑलरेडी काम कर रहा हूँ. आई एम सेटल इन दिल्ली. राइट. आई गॉट मैरिड बाय दैट टाइम ऑल्सो, बट द मोमेंट आई गॉट एन ऑफर आई ऑप्टेड इट बिकॉज आई नो कि यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ टू गेट मोर. अगर मैं यही सोच के, अब यहाँ पे 2 पॉइंट है. एक तो आई शोड द zeal, आई शोड दैट थ्रस्ट, आई शोड दैट थ्राइव कि मुझे आगे बढ़ना है. आई नीड टू इंक्रीज माय पैकेज. आई डोंट वांट टू सेटल एट द सेम पैकेज. तो मैंने उसे ऑप्ट किया. सेकंड, you left your comfort zone. Yes. Basically people do not want to leave their comfort zone. Correct. Second point is I सबसे बड़ी गलती करते हैं. I left my comfort zone. Yes, I left my comfort zone. अगर मैं उसी comfort zone में रहता कि नहीं मैं Delhiite, I will live in Delhi, I'll die in Delhi, this and that, तो मेरा पैकेज भी उतना ही होता. Correct. मेरा पैकेज भी उतना ही होता. Now I got double the package which I was receiving at that time, and I joined Bangalore. और उसके बाद you can see my technologies like from AngularJS to I am probably one of the guy on the earth who know all the version of who worked on all the version of AngularJS and Angular. तो मैंने AngularJS के भी सारे वर्जन पे काम किया और Angular के भी सारे वर्जन पे काम किया, which is 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Right now I updated myself into 10.
Correct. So I kept updating myself and kept changing my job also. Different projects, different domains, right? If you see my career graph, so you can see I left, NextGen as an architect. I joined Scorpio Solution as a R&D head. Correct. So NextGen में मैं as an architect था. इससे पहले UI architect था iWare Comtech में. This is third largest company of gaming and gambling. Right. Then we have UI. I worked as UI technical lead in Genims. I work with Deloitte. I work with Sonata Softwares. I work with UST Global. I work with Error Creation. I work with HK Media, right? Apart from this, I am also working as a consultant for so many other companies like Trigent, right? Like Endosoft, right? I'm working as a consultant. Consultant means I'm giving my consultancy that how the project structure should be, how the team should be. I mean things like that. I'm also working as a corporate trainer as well, right? So point is, if you keep updating yourself, right? If you keep updating yourself, you will keep updating the latest package. अगर monetary term में, अगर से cash value में अगर तुम इसे देखो, तो जैसे जैसे तुम update करते जाते हो, वैसे वैसे cost तुम्हारी बढ़ती जाती है automatically. Now you tell me, I'll ask this question to you. I mean, let me ask you back. .NET, Java, PHP. You all have heard about it? Yes or no? Quickly. Yes. Okay. Yes, sir. ये तो तुम्हें तो पता है, तुम्हें कि legacy application, you know that these are legacy technologies, not applications, sorry. These are legacy technologies, correct? Agree? Yes? थोड़ा Yes. आपको हिंदी बताना पड़ेगा. Legacy मतलब ये तुम्हें पता है पुरानी technologies हैं. Agree? Additional. Correct ना? PHP, .NET, Java. Yes or no? Chat Yes, पर? sir. But Correct. advanced versions are available. One second. I'm coming to the different level itself. So ये तो पुरानी technologies हैं जो अभी भी use होती हैं, no doubt. There is no doubt about it कि ये technology market से बाहर है. No, these are in the Yes, sir. market और ये रहेंगी market में, जाएंगी नहीं है. But मैं कह रहा हूँ ये पुरानी technologies हैं. ये agree करते हो कि नहीं करते हो? Okay. Yes, sir. Okay. Which means already market में इसके developers available हैं? Yes or no? Yes, sir. Good. Which means अगर market में job निकलती है इनकी, तो market में already developers होंगे, तो तुम्हें chance मिलेगा कि नहीं मिलेगा? You tell me. Already जो है, hey, my ex-CEO also there with me. Huh? I didn't know about it. Okay, he sent me a request. हाँ, so market में already developers हैं. So जो already experienced developer हैं या developers हैं already bulk में हैं, तो जिन्होंने काम किया इन टेक्नोलॉजी पे PHP, .NET, Java, तो उनके अगेंस्ट में तुम्हें चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिंपल वर्ड, yes or no? No, sir. Very less. No. Very less or almost less? Negligible. Almost. क्यों Yes. मिलेगा? Almost क्यों मिलेगा? less. You tell me, तुम किसी को जॉब दोगे? If you are a CEO or CTO of a company, right, or HR, will you give a job to a fresher or will you give a job to other guy who will be, almost at the same cost? Correct? No. Obviously तुम भी नहीं दोगे. Simple सा clear fund है demand and supply का. Okay. Now we come to the real time situation. अगर ऐसी टेक्नोलॉजीज पे हम अपने आप को अपडेट करें जो मार्केट में अभी हॉट है, जो फ्यूचर है, प्रेजेंट तो है ही है, फ्यूचर भी है, और जिनमें अभी स्किल्ड रिसोर्सेज नहीं है. क्यों नहीं है? मैं सबसे पहले क्यों पे आता हूं. क्यों नहीं है? क्योंकि लोग आज भी टिल नाउ ऑल्सो, द पीपल whom I worked with, they never came out of their comfort zone called I'm a backend developer. जो मेरे साथ backend developer पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं, वो आज भी बैकएंड डेवलपर ही हैं. .NET वाला .NET में ही है, जावा वाला जावा में ही है. उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया. So now they are a .NET Java. Obviously they are like Superman in these technologies, but they they are not updated. Correct? So what I'm trying to tell you is कि आपको उन टेक्नोलॉजीज में जाना चाहिए जिन टेक्नोलॉजीज में अभी डिमांड है लेकिन सप्लाई नहीं है. वेरी सिंपल थिंग, जैसे मीन स्टैक है. मीन स्टैक, MongoDB, Express.js, Angular, Node. खाली एंगुलर ही अगर आप गूगल पे सर्च मारो, जॉब्स इन एंगुलर, जॉब्स इन रिएक्ट, जॉब्स इन Vue.js, जॉब्स इन रिएक्ट नेटिव, देयर आर सो मेनी जॉब्स इन दीज फील्ड्स. ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो मैं तो आपको पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट बता रहा हूँ, मीन स्टैक, जिसमें एंगुलर या रिएक्ट आता है. करेक्ट? एंगुलर, रिएक्ट या Vue.js आता है. गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप मीन स्टैक करते हो तो MongoDB, लेटेस्ट डेटाबेस, विच इज NoSQL डेटाबेस. खाली MongoDB सर्च मारो, कितनी जॉब्स हैं MongoDB डेवलपर्स की. Node.js डेवलपर सर्च मारो, इतनी जॉब्स हैं Node.js डेवलपर्स की. Angular, React, Vue.js सर्च मारो, इतनी जॉब्स हैं इनकी.
एंगुलर की, रिएक्ट की, Vue.js की, एंड ट्रस्ट मी देयर इज नो सप्लाई फॉर इट. नो सप्लाई फॉर इट मतलब जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली सप्लाई है ही नहीं. I don't understand why you north guys, right, don't look up to south. तुम्हें आइडिया है कि साउथ में कितना अच्छा पैकेज मिलता है फ्रेशर्स को या एक्सपीरियंस को, राइट, और कितनी जॉब्स हैं साउथर्न पार्ट में. बट पॉइंट इज we as a north Indian are very rigid. Rigid in the sense we don't want to go out, we don't want to lose our comfort zone. तुम्हें आइडिया कितनी जॉब्स हैं वहां पर, और मैक्सिमम जॉब्स वहां पर कौन आते हैं जो 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 अपॉर्चुनिटी उठाते हैं, वो ईस्टर्न बेल्ट के, नॉर्थ ईस्ट से, ये उड़ीसा बेल्ट से. तुम्हें इतने लोग मिल जाएंगे बैंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई में, पुणे में, जो यहाँ से आते हैं और दे गेट अ जॉब वेरी इजीली. प्लेंटी ऑफ जॉब्स आर देयर. हम सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव नोएडा इसी में टिके रहते हैं, एंड हेंस वी गेट वेरी लेस पैकेज. यहाँ पर नॉर्थन साइड में फ्रेशर का पैकेज 20,000 होता है पर मंथ का. साउथ साइड में स्टार्टिंग ही 35-40 के अराउंड होती है. 35 तो कहीं नहीं गया, 36 तो कहीं नहीं गया, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? एंड व्हेन यू चेंज स्विच तो 30% 20% हाइक मिलता ही मिलता है. गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर तुम अपना करियर पाथ अगर अच्छे से सेट करो, सो देयर आर प्लेंटी ऑफ जॉब्स इन द मार्केट. दिस इज अ मिथ. ये सिर्फ एक भ्रम है. पीपल से हे दिस इज कोविड में जॉब नहीं है. I just not, I mean, month ago I changed, my job, right? Month ago I changed my job. मैं एक महीना पहले till 31st December I was a solution architect in NextGen company, NextGen Healthcare, and now I joined, Scorpio Solution as a R&D head. So market में jobs ही jobs हैं. ये एक myth है, भ्रम है कि market में job नहीं है, कोरोना के चक्कर में jobs down हो गई हैं. ऐसा कुछ नहीं हुआ है. This is all bullshit. बहुत jobs है market में. हमें सर्च करना नहीं आता, हमें पता नहीं हमें किस में जाना है. What you people do is, don't take me wrong, but what you people do is you listen to everyone and start doing everything. तुम्हें किसी ने बोला पाइथन कर ले यार, पाइथन में बहुत जॉब है, तो तुम पाइथन करना शुरू कर देते हो. बट तुमने पलट के ये सर्च किया, डिड यू सर्च कि पाइथन में फ्रेशर लेवल पे एंट्री है कि नहीं है? डिड यू सर्च एवर? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू माइट हैव स्टार्टेड पाइथन आल्सो. यस और नो? बहुत लोगों ने पाइथन, एआई, मशीन लर्निंग इस समय स्टार्ट कर दिया होगा. यस और नो? किया कि नहीं किया? Yes, sir. किया होगा ना, राइट? सुना होगा, सोच रहे होंगे करने का. बट तुमने ये सोचा कि पाइथन लेवल पे जॉब है कि नहीं है? तुमने AWS क्लाउड सुना होगा, क्लाउड हर जगह क्लाउड चल रहा है, राइट? AWS, Yes, Azure, sir. राइट? तो Yes, तुमने sir. सोचा होगा ये कर लेते हैं, हम पढ़ लेते हैं इंस्टीट्यूट में जाके. बट हैव यू, these are latest cutting edge technologies. Python, machine learning, AI, cloud, these are latest cutting edge, no doubt about it. बट इसके साथ ये भी तो देखो कि इसमें जॉब्स हैं कि नहीं है इनिशियल फ्रेशर्स के लिए. नो. कोई अपना क्लाउड, जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड एंड देन आंसर. आई मीन थिंक माइंडफुली. मेरा क्लाउड, कंपनी का क्लाउड जिसपे सारी एप्लीकेशन होस्टेड है, क्या मैं फ्रेशर्स के हाथ में दूंगा? व्हाट डू यू से? इट इज लेटेस्ट ऑफ कोर्स, बट विल आई गिव इट टू द फ्रेशर्स? व्हाट डू यू से? नो. व्हाई आई विल गिव इट टू दिस? सेकंड थिंग, जो एआई फीचर्स हैं, एआई सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का एक फीचर होता है. द होल एप्लीकेशन इज नॉट बिल्ड इन एआई, करेक्ट? तो मुझे इतने एआई डेवलपर्स चाहिए ही नहीं, तो मार्केट में इसलिए उनकी इतनी जॉब्स भी नहीं होती हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? तो टेक्नोलॉजी वो पिक करनी चाहिए जो लेटेस्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, एंड फॉर यू स्पेसिफिकली द मेन फिल्टर इज जिसमें फ्रेशर्स को अलाउ करें, राइट? जिसमें फ्रेशर्स को अलाउ करें. सो ये जो फुल स्टैक डेवलपमेंट है, द लेटेस्ट फुल स्टैक डेवलपमेंट, करेक्ट, ये वो टेक्नोलॉजी है जिसमें मार्केट में जॉब्स ही जॉब्स हैं. फ्रेशर्स के लिए जॉब है, राइट? नॉट फ्रेशर, स्किल्ड रिसोर्स के लिए जॉब है, चाहे वो एक्सपीरियंस 0 से 2. इफ यू नोटिस, हम फ्रेशर किसको बोलते हैं? 0 से 2 इयर्स एक्सपीरियंस को. यस और नो? किसी को पता है ये बात कि नहीं पता? when we term Yes, sir. when we say term called fresher, तो हम बोलते हैं 0 से 2 years experience, right? So 0 से 2 years experience means जिसने internship 6 months की है, तो वो 0 से 2 year में आता है कि नहीं आता है? Yes or no? Yes. Agree? So if you do internship for 6 months in these technologies, you have very good chance not only to join the same company where you are doing internship, but you will get offer from other companies as well. जैसे Shubham बेचता है, he got offer from TCS, right? Getting my point?
So he didn't join us, he joined some other company. Ravi, join, our company. Correct. So तुम्हारे पास options होते हैं. See, अभी तक तुम्हारे पास ये भी नहीं पता, अभी तुम्हारे पास options ही नहीं है. But after internship, you got options to choose. Correct. I mean, before internship, it's like beggars are not the choosers, right? But after internship, you can choose which company you wanted to go. Again, if you show promise, if you show determination, if you show hard work. I mean, same simple rule. The rule which goes with life, same rule goes with the technology as well, or internship as well, right? So this is what I wanted to discuss, or discuss in detail with you guys. I think Ravi Pandey is here, so let's listen to him also. What Okay. he wants to say, if it is the same Ravi Pandey or Ravi Pandey. It's our Ravi Pandey. And Okay. Ravi, don't cry because you joined 4 or 5 days back only. Okay, you got your first job, so don't cry. Just speak, huh? Okay. Right. I would say ki you specifically ask few questions, and Okay. Ravi, So please just come wait, up. wait. Yes, sir. Just wait, just wait. Right. Ravi was with client Suresh. रवि No, sorry. अच्छे से बाल Client. बना ले और उसके बाद अच्छे से चेहरा ठीक कर ले क्योंकि तेरी वीडियो भी आने वाली है. So client, sorry, Ravi was with Suresh. He is a CEO and CTO of our company, Hello. Corporate Solution. So he was discussing directly with him something about the project. So that is why he was late. Yes, sir. Yeah. Yes, Ravi. How are you today? Yes, sir. Sure. Then I'm fine. I'm fine. Hello, all of you. What I say, actually ऐसा है कि मतलब लाइफ में हर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, बट मेरे हिसाब से मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी बेस्ट थी और मैंने अपना 101% दिया. और मतलब ये नहीं था कि टीम कभी मतलब कहीं पर भी हम लोग मतलब पीछे पड़े थे, मतलब छूट जाता था कहीं पर, तो सर उठा के मतलब बता देते थे कि हाँ ये करो. तो मेरे लिए ये सही लगा कि मतलब मेंटोर काफी अच्छे मिले मुझे, और जैसे अजय सर, रवि सर काफी सपोर्टिव हैं और काफी अच्छा है. और आप लोग Don't forget to mention Ravi Suresh video. also, yes sir Suresh, yes sir Ravi Suresh sir. because No, he helped you a no, sir. lot. Yes sir, so many, yes sir. और क्या बस Tell ये है कि tell yes sir. tell about the number of project you worked, or what kind of project you worked on. Yes sir. Okay Jira, around basically. around We 9 should to show 10. his Git history. Yes sir, sure. Around 9 to 10 projects are completed with Ajay sir and with Scorpio Solution Malaysia. And about I like LMS learning platform. Then we go to Verja management system. Then we go to VSS, Verja security management system. Then we in this time real time project like VSS, and that Verja asset management VAM, system. which you just now started. VAM. This is running project Yeah. right now. So your VAM, sorry, VAM. Yes, sir. Vajra Asset Management. Yes, So sir. your voice is little In breaking. VAM, like, okay, so maybe network problem, maybe in my town, maybe network problem. Okay, no problem. No Yes, problem. sir. So Ravi, can you Oh. show your Git history? So right now I am joining with my phone. Sorry. Okay, let me Actually, show your Git history. I yes, sir. have your all profile. Yes, Ravi, sir, sir. can we show the Git history? Or Yes sir, please. shall we? Please. Because देखो कॉर्पोरेट में कोई भी आपके कागज पे लिखे हुए कोडिंग पे नहीं जाता, वो दो चीजों से एनालाइज करता है, राइट? आप या तो अपना जो इंटरव्यू है उस इंटरव्यू में उसको डिस्क्राइब कर पाओ, जो भी आपने कोड किया है, जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है, या फिर आपके पास प्रैक्टिकली दिखाने के लिए गिट हिस्ट्री है. गिट हिस्ट्री विल आल्सो गिव देम द आइडिया कि यस दिस पर्सन हैड वर्कड फ्रॉम लास्ट 7 months 8 months एंड दिस इज द डेली और वीकली और मंथली टास्क्स दैट ही हैव अकम्प्लिश्ड. तो ये सारी चीजें काफी मायने रखती हैं आज के डेट में आपके प्रोफाइल को बिल्डअप करने में. और हम लोग जो प्रॉमिस कर रहे हैं, हम लोग जो जितने भी बच्चों को इंटर्नशिप करा रहे हैं, डे 1 से उनके पास गिट आईडी होगी और गिट पे ही उनको टास्क फ्लोट होगा और गिट पे ही उनको अपना टास्क सबमिट करना होगा, राइट?
So this is the corporate level, you can say, expertise that we are providing to you people. रवि का कम्युनिकेशन स्किल उस लेवल पे अभी आप लोग देख भी रहे होंगे कि बहुत इंग्लिश में बहुत फ्लुएंट नहीं है, राइट, बट हिज कोडिंग स्किल्स आर वेरी गुड. आई एम सॉरी रवि, मैं मतलब बुराई नहीं कर रहा, मैं एक तरह से तारीफ ही कर रहा हूं. Then you should have seen him 6 months back. Then 6 months back he was not at all a confident guy, but after working here, now in March April he will be handling the team in Malaysia. इसने मुझे लग रहा है हमने पहले भी वेबिनार में रवि को इनवाइट किया था, लेकिन इसने कभी बोला नहीं आके कि मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा. जब तक इसे ऑफर नहीं मिला तब तक नहीं बोला इसने. So now see, this is Ravi's check-in a day ago, and I can show you other project also where he's been working from past 2 months, 3 months, 4 months in this branch. See, this is all Ravi Pandey's code check-ins. This is what called check-ins, code check-in, right? This is mine. See, most of the students, they do not know about all these things. Git के बारे में पता ही नहीं है. पता है तो सिर्फ ऊपर से सुन रखा है, काम ही नहीं करा है उसके ऊपर में बहुत सारे बच्चों ने, राइट? कई लोग तो ऐसे होंगे जो पहली बार गिट देख रहे होंगे. Correct me if I'm wrong. You guys are aware of Git? Are you aware of Git? कितने लोगों ने गिट पे काम किया हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड. क्या सुना हुआ है? I heard. Correct. You can see this is all Ravi Pandey. This is your day in day out in a IT company. Yes. Git. See, this is Ravi Pandey. This is 2 months before check-in. This is a separate project called Vajra, VSS, Vajra Security Solution, which he has started the prototype. Correct? जिसकी आगे extension के लिए we need people basically. Right? This is 2 months old, and if you keep on going, he has the complete history. See, 3 months old. This is Mohit Khandelwal, right? Khandelwal, sorry. We have Mehboob. So they joined the different companies. अच्छा, इनके सर्टिफिकेट्स भी हैं सर जो रिलीज करने हैं, महबूब और इनके. हाँ, they have to show them in their resumes. Yes. See, this is Ravi Pandey's 4 month before push or check-in. If you keep on going, it's like again, right? And there's some other project also. Yeah. I guess you got an idea. Yeah. Right. एक चीज जो मैं बोलना चाहूंगा ना, वो ये कि अजय सर कोडिंग के साथ साथ, कोडिंग में तो बहुत शार्प हैं ही. रवि, कितने घंटे आप लोगों ने कंटिन्यूअस कोडिंग करी है? मुझे पता है कि कई बार पूरी रात इन लोगों ने दोनों ने साथ में बैठ के 6 बजे तक कोडिंग की. If you are ready at that level also, I mean, you are cool then. I mean, you are more than welcome in that case. अजय सर सुबह 7 बजे लॉगिन करते थे. जो प्रीवियस कंपनी थी उसका लॉगिन सुबह 7 बजे होता था, 7:30 और 7 बजे से वो रात के 2-2:30 बजे तक लॉगिन रहते थे. पूरा sometimes like 18 hours, 19 hours, 20 hours. Yeah. Correct. And it's not कि उनके जॉब प्रोफाइल में था, it's that कि उनको पैशन है कोडिंग का, और उससे भी ज्यादा पैशन है जो सीखा है उसको आगे दूसरों को सिखाने का. कि जो गलतियां या जो एक्सपीरियंसेस मैंने लिए, अभी वो कह रहे हैं कि मैं 15 साल में यहाँ तक पहुंचा हूँ, बट अगर मैं किसी को सिखाऊंगा तो वो 7-8 साल में मेरे वाले लेवल बहुत जल्दी लेवल पे पहुंच जाएगा. बहुत इजीली, राइट? क्योंकि इन्होंने भी खुद से सीख के एक प्रोसेस तैयार किया है खुद के लिए. करेक्ट. आप लोगों के पास क्या एडवांटेज है कि इनका वो जो प्रोसेस है आपको फिल्टर्ड प्रोसेस मिलेगा पूरा का पूरा, राइट? और जब भी आप ग्रोथ की बात करते हैं तो जब तक आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस पे काम नहीं करेंगे, आपको जो भी डिजर्विंग ग्रोथ है वो नहीं मिलेगी. आप अगर किसी प्रोजेक्ट के मेंटेनेंस पे काम करेंगे, अगर आप किसी प्रोजेक्ट के टेस्टिंग पे काम करेंगे, तो उतनी ग्रोथ मार्केट में आपको नहीं मिलेगी. इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में क्या होता है, आपको हर बार नया कुछ करना होता है, और उस नए करने के लिए आप लेटेस्ट मार्केट में जो भी नई चीज आई होगी उसको सीखेंगे, और उसको सीखने में आपकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, आपका नॉलेज भी इंप्रूव होगा, और आपकी इकोनॉमिक वर्थ भी इंक्रीज होगी. तो इस इंटर्नशिप का मकसद सिर्फ इतना नहीं है कि आप लोगों को हम ट्रेनिंग दे के एक सर्टिफिकेट दें और अपने पास नौकरी दे दें. इसका जो ऑब्जेक्टिव है, वो जो अजय सर ने एक पाथ चॉकआउट किया था खुद के लिए, आईटी इंडस्ट्री को बिलीव मी इस वक्त बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों की जरूरत है, बहुत सारे
शार्प लोगों की जरूरत है। आईटी इंडस्ट्री को भी छोड़ो, मैं स्कॉर्पियस की बात करूं तो स्कॉर्पियस को अगले 2 से 3 साल में लगभग 300 R&D प्रोफेशनल्स की जरूरत है, क्योंकि स्मार्ट सिटी विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। अब सारी सिटीज स्मार्ट सिटी हो जाएंगी, सारी सिटीज अपना क्या कहते हैं सारा डेटा ऑनलाइन करेंगे। आप मेडिकल हिस्ट्री ऑनलाइन होगी, एकेडमिक हिस्ट्री ऑनलाइन होगी, आप एक सिंगल नंबर से एक दूसरे की सारी चीजें जान सकते हैं। तो आपको हजारों प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम करते होंगे, राइट। सर ने आपको अभी सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट का या सिक्योरिटी मैनेजमेंट की चीजें बताई हैं। इसके अलावा सेवरल वर्टिकल्स है, डेयरी मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जो हमारे प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है या जो पायलट हम लोग कर रहे हैं अभी। तो और इंडिया में तो अभी कदम भी नहीं रखा है स्मार्ट सिटीज ने, राइट। तो यू सी द अपॉर्चुनिटी कि किस तरह की अपॉर्चुनिटी है। एंड थैंक्स टू कोविड एक जो और अच्छी चीज इंडिया के लिए हुई है वो ये कि बहुत सारे लोगों का जो ट्रस्ट था वो चाइनीज कंपनी से हट गया है। अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा, राइट। और जब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस बनेगा तो बहुत सारे आईटी प्रोफेशनल्स की वहां भी जरूरत होगी कि जो अलग अलग आईओटी डिवाइसेस को या इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को या जिसकी हम बात कर रहे हैं ना एसेट मैनेजमेंट की तो वो एसेट मैनेजमेंट की जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी। तो हम उस ग्रोथ के लिए आज से तैयारी कर रहे हैं। आज से हम कॉलेज के अंदर जाके उन बच्चों को तैयार कर रहे हैं जो 1 साल 2 साल में हमारे पास आ जाएंगे तैयार होके। तो 6 मंथ्स इंटर्नशिप वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है हमारे पास। इसके अलावा कॉलेज के अंदर जाके उनका इंक्यूबेशन सेटअप करना, कॉलेज में जाके उनके 2 साल तक बच्चों को ग्रूम करके फिर अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब करना, ये सारे प्लान्स हमारे पास में हैं जो हम अलग अलग कॉलेजेस में जाके एग्जीक्यूट कर भी रहे हैं, राइट। और जो बच्चे हमसे पहले से कनेक्टेड हैं उनको पता भी होगा इस चीज का, राइट। तो with this thought process we are coming to you. With this thought process we want you to be a part of it. Don't think it कि मैम हम पैसे दे रहे हैं, पैसे दे के ट्रेनिंग कर रहे हैं। नो, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप पैसे दे रहे हो और पैसे दे के ट्रेनिंग कर रहे हो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो प्लीज आप अपने पैसे जिन्होंने दिए भी हुए हैं और जो देने की सोच भी रहे हैं आप अपने पास ही रखिए, देने की भी जरूरत नहीं है। What we need is a person who feel confident कि yes अगर मैं इनके साथ रहूंगा तो मेरा आईटी करियर अच्छे से बन जाए, राइट। मैं जो अपना सपना आईटी में आईटी प्रोफेशनल के तौर पे खुद का एक सपना देख रहा हूँ, मेरा वो सपना पूरा होगा। तो जिन लोगों की आंखों में वो सपने हैं, जिन लोगों के कीड़े हैं कोडिंग करने के, वो लोग हमारे साथ में जुड़े, राइट। वी डू नॉट वांट मनी, हमें पैसे नहीं चाहिए, पैसे हम बहुत कमा लेंगे, राइट। अगर हमारे प्रोजेक्ट्स अच्छे होंगे तो, अगर हमारे पास मैन पावर बहुत अच्छी होगी तो। आईटी प्रोफेशनल्स को सबसे ज्यादा सैलरीज क्यों मिलती है? इसीलिए मिलती है क्योंकि उनके बनाए हुए प्रोडक्ट से कंपनी लाखों करोड़ों रुपए कमाती है, राइट। आप जो सॉल्यूशंस क्रिएट करेंगे उन सॉल्यूशंस को बार बार कंपनियां बेच के उसको प्रॉफिट कमाती है, राइट। तो इसीलिए आप सब लोगों को देखा होगा कि जो वेरी हाई सैलरीज हैं वो मिलती है आईटी इंडस्ट्री में। हम भी चाह रहे हैं कि आप लोग उस चीज को एक बार पहले देखो और देख के उन सबको ज्वाइन करो, राइट। अजय सर, ओवर टू यू। आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। Yes. We covered almost we everything. should हाँ Yes, sir. You conclude then, na? You conclude the last. What is next that we need to, tell them? Correct. There is a student Shivam Badwa. Shivam, you are from TMU, right? और आप among the pioneers हैं जिन्होंने वहां से रजिस्टर किया है। I would appreciate Shivam's efforts because इन्होंने लास्ट वेबिनार अटेंड किया और लास्ट वेबिनार अटेंड करने के within 2 days registered, right? Because he is clear and he quickly takes action. बहुत बार क्या होता है एज ए स्टूडेंट हम लोग ना 50 बच्चों से घूमते फिरते हैं, बात करते हैं, यार तू क्या कर रहा है, यार तू क्या कर रहा है, यार तू क्या कर रहा है, राइट। व्हाट आई लाइक्ड अबाउट शिवम इज कि इसने अपना दिमाग लगाया, कुछ बच्चों से डिस्कशंस करे और इसके बैच के डिस्कशंस जो चल रहे हैं इसके बैच में बाकी बच्चों के, वो डिस्कशंस ये चल रहे हैं कि यार हम थोड़ा सा रुक के करते हैं, थोड़ा आराम से कर लेते हैं, इतनी जल्दी क्या है। वो कबीरदास जी का दुआ है ना, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है परसों। ये वाली नई वाली फिलॉसफी चला रखी है सबने, राइट। सो आई अप्रिशिएट यू शिवम फॉर दिस। जस्ट टेल मी व्हाट पुश्ड यू कि तुम इतनी जल्दी रजिस्ट्रेशन कर लो, जबकि आप लोगों को तो आना भी फरवरी में है, तो क्यों तुमने सोचा कि मैं जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ?
why you are quick in your decision. So you talking about me now? Yes, I'm talking about you. Okay, okay. So what I observe is that the projects you are working on are are having very high scope in the upcoming years, right? Because of the COVID, most of the overseas um, clients will going to definitely focus on in the Indian market, and so I see that Angular and all these basically main this mean stack development applications will going to be uh, used in a good number of uh, places in India, right? Especially the smart cities and all these projects, smart monitoring, surveillance, and all these type of projects will going to have a good value here. So I thought it would be a good opportunity for me to learn these skills, to learn these knowledge, to gather this knowledge from you, and will pursue it. That's why. ग्रेट. अच्छा, मैं जल्दी से, क्योंकि देखो जो आपके कॉलेज के बाकी बच्चे सोच रहे हैं वही इन जनरल सारे बच्चों का परसेप्शन भी होता है, राइट? और बहुत सारे जो उनके परसेप्शंस थे, आज शायद मैंने उन परसेप्शंस को एड्रेस भी किया है यहाँ पर, राइट? तो उनके माइंड में क्या चल रहा है अभी, बाकी जो बच्चे हैं वो भी आप थोड़ा सा क्विकली एक बार रन डाउन करा दो बाकी बच्चों को. So the reason they are paused is because we are still pending some exams of this please, semester, which going to be conducted about after 4 days, maybe by 17 we're going to have all the exams done. So maybe all those going to attend your webinar, maybe. I circulated your message in the start an hour before, so they will so Correct. whoever will be interested, they will attend. Yes, Shivam. Yes. I already circulated in the start of the in the start about 5 o'clock in the college group, so a few students attended already. Great. So Shivam, welcome, and hopefully you will excel and you will achieve whatever you have discussed so far, right? Tell me one thing, what is your aim in IT industry? किस मकाम को हासिल करना चाहते हो IT industry में? So development designations would be good for me. Well, I'm just a fresher, so I'm hoping to serve development firms, right? In the manufacturing industry as well, and the government projects, constructions and all, whichever. Basically the developments all. करेक्ट. पता है क्या, हम लोगों को बार बार यही बोला जाता है, डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. हम उससे भी एक लेवल आगे की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग ऑफ solutions, innovation. The solutions, exactly, the services. Correct. Yes. Correct. So now we are giving you a platform where you can call yourself a solution developer, right? अजय सर का जो डेजिग्नेशन है, जो पिछले 5 सालों से डेजिग्नेशन है अलग अलग कंपनीज में, वो सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का है, राइट? एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट कौन होता है? जो पहली बार क्लाइंट से कुछ शब्दों को सुनता है, उसके आइडिया को सुनता है और उस आइडिया को एक आईटी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है. और वो ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि उसके पास इतना डीप रूटेड नॉलेज होता है उस चीज का. उसने कई सारे प्रोजेक्ट्स को इस तरह से एग्जीक्यूट किया होता है अपनी लाइफ में, राइट? जहां से वो उनके लिए नए नए सॉल्यूशंस निकालता है. सो वी वांट यू टू फील दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंग टू दोज रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री, राइट? So with this, thank you so much, Shubham. And anybody else who would have any questions? Ravi, एक question तुमसे है. Are you there, Ravi Pandey? Yes, sir. पहले वाले रवि में जो आज से 7-8 महीने पहले जिसने ज्वाइन किया था और इस वाले रवि में कितना डिफरेंस है जो तुम
अपने शब्दों में बोलना चाहोगे? सर एक्चुअली बहुत डिफरेंस है, बहुत मतलब, क्योंकि मुझे अब कोऑपरेटिव वर्ल्ड में जीना आ गया है। मेन बात कोऑपरेटिव वर्ल्ड का काम क्या होता है ये मुझे पता चल गया है। देन कैसे करते हैं, क्या क्या मतलब कैसे रास्ते होते हैं, कैसे पाथ होता है, कैसे हम किसी चीज को करते हैं, वो चीज मुझे समझ में आई। पहले मुझे लगता था कि सब कैसे होता है, क्या होता है, एक डर था मन में। बट इन अभी की जो सिचुएशन है वो काफी मतलब मुझे अब कॉन्फिडेंस आ गया खुद में और मैं कर सकता हूँ, मतलब इतना बिलीव आ गया है, मतलब करेक्ट। that's all. और ये कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप हुआ? रातों रात डेवलप हो गया या वो जर्नी कैसी रही? कॉन्फिडेंस कैसे आया? सर गलतियां करी या हर बार बिना गलती के ही आगे निकल गए? नहीं सर, बहुत बार गलतियां करी, बहुत बार सीखा, बहुत बार बहुत मतलब मतलब हार्ड वर्क किया। और साथ साथ अजय सर थे तो सर हमेशा मतलब गाइड डायरेक्शन, मतलब राइट पाथ में कराते थे कि हाँ ये चीज ऐसा होना चाहिए, और मतलब बताते थे। मेन बात ये है कि और सीखने को काफी कुछ मिला और अभी भी मिल रहा है, मतलब ऐसा नहीं मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है। और अच्छा खासा मतलब मैंने अचीव कर दिया, जो मैंने जिस चीज के लिए सोचा था वो मेरे आगे टैग लग गया है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सो गुड देन गुड। और बहुत बहुत जल्दी ही तुम्हारे आगे सॉल्यूशन आर्किटेक्ट भी लग जाएगा, डोंट वरी। यस सर, यस सर। Right. Anybody else who would want to say anything, who would want to tell something? Sir, in this internship, uh, what will be the skills we going to Need. kind of a knowledge development, just the Angular and also वो भी बता दीजिए. करेक्ट। इसमें जो इस इंटर्नशिप में हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं या हमने जो प्लान किया है, आप लोगों को फुल स्टैक वेब डेवलपर एंड मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव, राइट? तो इसके रिएक्ट ऊपर नेटिव हम और लोग आयनिक। आयनिक। ओके सर, प्लीज आप थोड़ा सा इसको टेक्निकली समझा दीजिए। आई एम फ्रॉम मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो So- आई वुड सजेस्ट कि सर ही इसको समझाएं। So full stack development plus mobile development, so that you will have multiple profiles. So full stack development में आपका mean आएगा, जिसमें you'll have MongoDB, Yes, sir. Express.js, Yes, sir. Angular and Node. So you will have a job profile of a Node.js developer. You will have a job profile of MongoDB developer. You will have a job profile of UI developer with Angular. Correct. Apart from that, when you learn mobile, correct, so you will have a tag of mobile developer as well. So there's 4 job profiles which you are going to have through this Under the internship. internship, no? Absolutely. Okay. Because whatever product we are making, there has to be a mobile app for that, which means whatever you build, you will be working parallelly on the mobile app as well, right? Okay. So mean stack, Ionic. If let's say clients demand, we will have mobile development in Flutter or React Native, otherwise Ionic framework. It depends upon the client requirement. Correct. So Harishankar from IIMT, you said you have passed out. So what are you currently doing? Are you doing job? नहीं सर, अभी मैं ये पेंडेमिक से पहले काम कर रहा था, इस टाइम में भी कोई नहीं कर रहा। तो आपने अपना BCA फिनिश किया है ना वहां से? जी, ओके। तो हमारा मैंने ना एक BCA long term- फिनिश किया है। बताइए। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा था उस टाइम के, उससे पहले मैंने कोडिंग में मुझे कोई जॉब मिली नहीं है, एग्जैक्टली कहूँ तो। मैं इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा था वहाँ पे अपने, मतलब BCA के वहाँ पे उनका जो प्रोग्रामिंग वॉर टाइप का प्रोग्राम होता है, तो जिसमें हमारे बैच के सभी स्टूडेंट मतलब कोडिंग करते हैं, वो प्रॉब्लम्स देते हैं, उस पे हम सॉल्यूशन करते हैं। तो उसमें मैं बहुत अच्छा करता था। इनफैक्ट मैं 3 साल मतलब मैं फर्स्ट ईयर IMT Great. कॉलेज में मेरी फोटो भी है। So लेकिन फिर so भी so the मतलब work मुझे what you're जॉब नहीं doing, मिली। हाँ, तो job तुम जो काम जो तुम कर रहे हो वो other than IT है या other than coding है? अदर देन IT था। Okay, मैं okay. इससे पहले सेल्स में काम कर रहा था, पेंडेमिक से पहले। Mhm. एक्सिस में काम करता था। Okay. एक्सिस का इंश्योरेंस सेल्स वाला काम था।
मुझे कुछ थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई, तो मुझे भी लगा कि यार कोई जॉब करनी चाहिए, क्योंकि जो No, it's okay. ये प्रॉब्लम आईटी वालों के साथ भी है. I mean, why I'm saying is कि जो स्टूडेंट्स जिन रिसोर्सेज को कंपनी आईटी कंपनी भी उठाती है, करेक्ट, ये प्रॉब्लम उनके साथ भी है. Because when you get hired from directly company as a fresher, okay, just mark this point as a fresher. So what will happen is you don't have control on your career. As a fresher, when they take you, now I mean they can put you to testing. हो सकता है आप कोडिंग में अच्छे हो, लेकिन उन्होंने आपको टेस्टिंग में लगा दिया. आप सपोज यूआई में अच्छे हैं, आपका जो यूआई जो फील्ड है वो अच्छा है, स्ट्रांग है, यू हैव योर लाइकिंग इन यूआई साइड, यूजर इंटरफेस में, और वो आपको जो है सपोर्ट में लगा देते हैं, करेक्ट. सो फ्रेशर्स के साथ तो एक टेंशन, लेकिन कोड के साथ ही बोलो. मैं ये कह रहा हूँ सर कि करते तो हम कोड के ही साथ है काम ना, क्योंकि जैसे अब मेरा है वहाँ पे जैसे करता था, तो पे जेटी के थे कोई प्रॉब्लम के लिए तो वीवो के आते थे, तो मुझे मतलब अंदर ऑटोमेटिकली एक हुआ ना कि करने की चीज ऑटोमेटिकली एक अंदर क्या कहेंगे उस एक्साइटमेंट सी जाती है, वो चीज आती थी बार बार, इसीलिए मैं कहीं सेट नहीं हो पा रहा हूँ. ओके. मैं जॉब में मैं हो नहीं पाऊंगा, ये लग रहा है मतलब मैं जन्मा ही इसी के लिए हूँ, ऐसा लग रहा है. तो अब मैं सिर्फ यही करना चाहता हूँ एक्चुअली, सही बताऊं. यही जील हमें चाहिए, हमें ऐसे ही प्राणी चाहिए जो जन्मे ही कोडिंग के लिए या इनोवेशन के लिए हैं. राइट. मैं सच बताऊं तो मैं जब स्टार्टिंग में बीसीए फर्स्ट ईयर में था, तो वहाँ पे जब यूएस टीचर्स मुझे मैट्रिक्स पढ़ाते थे मैथ वाले में, तो मैं मैट्रिक्स का कोड बनाता था यहाँ पे बैठ के. वेरी गुड. एग्जैक्टली बताऊं तो सर एक और हमें कीड़ा मिला है. इस कीड़े को पकड़ लो, इस कीड़े को भी पकड़ लो. हरी, हम लोग ना, हमने एक अपना जार्गन बनाया हुआ है, हम कीड़ा बोलते हैं इन लोगों को जो इस तरह के सोच वाले लोग होते हैं. जैसे रवि को हमने नाम दिया हुआ है कीड़े का ही, तो हमें कीड़े ही पकड़ने हैं. राइट. और ये जो पूरा प्रोसेस चल रहा है, जो के फॉर्म में मैं बोल रहा हूँ कि हम ये कीड़े पकड़ने वाला ही पूरा प्रोसेस चला रहे हैं. हमें ऐसे ही कीड़े चाहिए. और देखोगे कि आप जैसे लोगों के साथ में हम अगले 2 से 3 साल में एक ग्लोबल R&D फर्म बन जाएंगे, जहां पर आप सब लोग किसी न किसी इनोवेशंस पे, टेक्नोलॉजी में किसी न किसी एक टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट होंगे. करेक्ट सर. आई रियली वांट टू डू सर. मेरे साथ के भी जो टीचर थे वो मुझे कहते थे कि आप R&D पे काम कर सकते हो, लेकिन कोई मुझे अभी आज तक कोई नहीं मिला, सच बता रहा हूँ. R&D में एकदम इस तरह से एक्सपोजर मिलता भी नहीं ना. पॉइंट तो ये कि यू शुड बी लकी इनफ to get yourself into R&D department. Okay, Shubham has a question. Yes, Shubham, please go ahead. Sir, yes, sir. I want to know that what kind of skills I need to do this internship. Skills. Okay, so yes, if you know OOPS, that should be good enough, because all latest technologies basically are related to OOPS. तो अगर आपको OOPS आता है, तो that should be good enough. Yes, sir. Yes, sir. Actually, I'm not too good in coding. I want to know that is it good for me or not? No. As I said, you should know only OOPS. अगर आपको थोड़ा OOPS का बेसिक पता है, जैसे क्लास स्ट्रक्चर, क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, राइट, क्लास ऑब्जेक्ट्स, सो इतना काफी है स्टार्ट करने के लिए. ये दिस इज गुड अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, कि उन लोगों के साथ व्हेन यू गो इनटू द न्यू टेक्नोलॉजी, यू डोंट नीड टू कैरी एनी बैगेज. कोई प्री रिक्विजिट्स नहीं है कि जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए या CSS आनी चाहिए या यू शुड बी गुड इन UI, यू शुड बी गुड इन कोडिंग. करेक्ट. आपको बेसिक्स पता है, दैट शुड बी गुड इनफ, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स पे ही ये टेक्नोलॉजीज जो है दे प्ले ऑन इट. Right? Okay, sir. Okay, thank you. हाँ. सर मैं भी सीखना चाहता हूँ, जैसे मुझे और लीनियर प्रोग्रामिंग ये पे इसकी मतलब इसकी C++ और जावा पे काम. C++, if you know, it should be good enough. Are you hearing me or not? Yes. C++ should be good enough. Because में OOPS आता है, तो it should be good enough. करेक्ट. हरी, आप अपना नंबर चैट पे शेयर कर दो सर के साथ, और सर मेरा नंबर भी आप चैट पे शेयर कर दीजिए. मैं आपका नंबर शेयर करता हूँ. वेट. हाँ, हरी, आप अपना नंबर भी शेयर कर दो और इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर लो.
राइट, सेव माय नंबर। और शिवम तुम्हारा नंबर तो है ही मेरे पास में। यस सर, मैं शेयर करता हूँ। Yes, sir. राइट, This is Ravi sir's number on the side. Okay, I am putting it into the chat. right. Sir, we have Akanksha also here in the group. So Akanksha, do you have any queries from Ajay sir, or do you want to address any issue which is coming up in your mind related to the students, their queries? Akanksha from the marketing Yes, sir. team. Good evening, Akanksha. Hello. How are you doing? Good evening, sir. I'm good. Akansha is one of us. Okay. Hello. Akansha. Okay. Yeah, yeah, yeah. ये हमारी she वाली didn't- आकांक्षा है। ये Sir, she- एक she- student की हाँ बोलो। Hello. हाँ, yes, tell me. Go Sir, ahead, एक go ahead. स्टूडेंट की क्वेरी थी कि he was saying कि मैं अभी 12th में हूँ Mhm, एंड मैंने ये सब सीखा हुआ है मींस टेक। he was saying कि मैं अभी मींस टेक सीख रहा हूँ, mhm. so am I be eligible for this training? I mean, if he can find out the time to code, yes, he is. I mean, it's better he start from as early as possible. हमारे लिए भी अच्छा है, उसके लिए भी अच्छा है. For us, why it is beneficial so that Yeah, we can get his services for longer period of time. For him, how it is yeah, good is, हाँ, for him how it is beneficial is कि उसको 3-4 साल अभी उसे जॉब की टेंशन नहीं है. So these 3-4 years he'll learn and get maximum knowledge. So it's a win-win Okay, situation for both of us. yeah, okay. उनका I ना asked for it इंटरव्यू also, लाइन ना, अप but करा लो। he was. Hello. उनका सर के साथ इंटरव्यू लाइन अप करा लो एक बार। Okay, no problem. His name is Anshuman, I think Anshuman. I'll send him the details. Sure. Yeah, he was saying so many times to me now that ma'am, am I be eligible, because he was so much interested in it. Mm-hmm. Okay. Apart from this, what are the other queries of the students जो generally अभी आ रही हैं? बच्चों के क्या response है ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए? सर रिस्पॉन्स तो अभी यही है कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अभी हम लोग इंटरेस्टेड नहीं है, मे बी नेक्स्ट सेम में इंटरेस्टेड है, कुछ के अभी एग्जाम्स लाइन अप है, सो दे आर सेइंग मैम रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं बट एनरोल हम लोग बाद में करेंगे बैचेस में। सो अभी यही सब क्वेरीज चल रही हैं स्टूडेंट्स की। सम आर इंटरेस्टेड फॉर ओनली ऑनलाइन, दे डोंट वांट टू कम टू नोएडा ड्यू टू कोविड। Okay. Even that is also possible. अगर आप देखो, so Ravi has done it through online only so far. We met only once, that too also in his college. Otherwise, ये 8 महीने वो हमारे साथ online ही रहा है and he delivered everything through online only. So I don't think online is an issue now. Yes, sir. Correct. So no problem. Okay. You can go for online. And after this news, maybe after this news of 10,000, maybe some are showing such interest. Okay. After the fees reduction, na, they were saying that they are interested. You had word with people? तुमने बात करी है? I mean, they agree and they're interested now? Right. So एक और चीज जो मैं यहाँ announce करना चाहता हूँ इस platform Now से। they are showing interest. Okay, good. हाँ, right. So I would like to announce, and this is to you also, Shivam, कि if students who are interested to go for online training, they have to pay only 50%, that is 10,000. Right? अगर आप लोग अपने कॉलेज में रह के या अपने घर पे रह के घर से इंटर्नशिप ज्वाइन करना चाहते हैं तो you have to pay only 10,000 rupees for the entire internship. उसमें जो 20,000 था उसको हमने reduce करके लेस कर दिया है, राइट? क्योंकि उसमें हमारे जो ओवरहेड कॉस्ट्स हैं वो काफी ज्यादा सेव हो जाती हैं। सेकंड थिंग जो एडवांटेज आपके लिए है ऑनलाइन ट्रेनिंग में वो ये है कि आपका लिविंग एक्सपेंसेस भी सेव हो जाता है, राइट? जो कि अनदर एक कंसर्न होता है आप नोएडा आके करते हो तो, राइट? तो 6 months का ऑनलाइन ट्रेनिंग का वी आर चार्जिंग ओनली 10,000 रुपीज, राइट? और हमारी जो काउंसलर्स हैं आकांक्षा, बाकी जो लोग हैं उनको भी आप ये मैसेज कन्वे कर दीजिएगा सब लोगों को, सो दैट दे आल्सो टेल द स्टूडेंट्स की ऑनलाइन जो लोग करेंगे उनके लिए फी 10,000 है, राइट? और हम लोग जो अभी अपना फर्स्ट बैच प्लान कर रहे हैं, वी आर प्लानिंग फ्रॉम जनवरी लास्ट वीक,
और उसके बाद फरवरी में TMU वाले बच्चे बोल रहे हैं उनका बैच एक स्टार्ट करेंगे. But Shivam, if some students they have concern related to monetary, you can tell them they can go for the online batch. And when the situation is okay and they have got the you can say vaccination done, they can come down to Noida in June or July, right? Or there are few people who are interested for the international internship also. हम लोग आपको इस internship के बाद 2 हफ्ते के लिए मलेशिया ट्रिप भी दे रहे हैं. तो जो मलेशिया ट्रिप ऑप्ट करेंगे उनका जो कॉस्टिंग है वो एडिशनल 40,000 हो जाएगा, राइट? तो ऑनलाइन इंटर्नशिप के बाद भी अगर कोई मलेशिया जाना चाहता है तो ही हैज टू पे 40,000 ओनली, करेक्ट? सो आई थिंक वी हैव टेकन अप ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट. हमारे ट्रेनिंग्स की क्या कॉस्ट रहेंगी, हमारे ट्रेनिंग्स की क्या ड्यूरेशन रहेंगी, राइट? इसका पूरा प्रपोजल आप सब लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है, राइट? संदीप सिंह इज आल्सो हियर. संदीप सिंह, आपने कुछ डिस्कशंस नहीं किए हैं, बाकी जितने भी लोग अभी प्रेजेंट हैं सबने कुछ कुछ बोला है. संदीप, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. Sandeep was actually thinking of, his question was about the cost, how much how much is the cost. So I guess we already discussed, Sandeep. Okay. Sandeep, can you unmute yourself? Yes, sir. Good morning. Yes. Good evening. Hi, Sandeep. Which college, Sandeep? Sir, GNIT, Greater Noida, sir. अच्छा, GNIT. GNIOT, sir. Greater Okay, Noida. अच्छा, कल मेरी आपसे बात हुई थी ना? राइट. Yes, sir. Yes, sir. राइट. तो आप अकेले ही पूरा GNIOT का मोर्चा संभाले हुए हो, बाकी बच्चे कहाँ हैं? Actually, sir, वो लोग सर बिजी थे सर कुछ. हाँ, देख रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ी क्या बोलते हैं इस जनरेशन का एक कंसर्न है कि पीपल आर सो बिजी. this generation. If you don't know, if you wanted to know who is, what is the meaning of busy, you come to me, I'll show you what do you mean by busy. When you don't have even time to talk to your mom, that is when we say we are busy. Okay? Correct. संदीप, आपने स्टार्टिंग से वेबिनार अटेंड किया था या मिड में आपने ज्वाइन किया है? नो सर, स्टार्ट सर. So how did you feel? क्योंकि आपने शायद पहली बार किया है, कुछ लोग थे जैसे हरी ने पहली बार किया, आपने पहली बार किया, तो how did it felt? What are the learnings that you are taking from this webinar? सर एक्चुअली सर ये फर्स्ट वेबिनार था सर. वैसे तो कॉलेज के सर वेबिनार लेता था सर. Okay. यस सर. तो अच्छा लगा, मतलब नॉलेज मिली, what he is trying to ask is knowledge मिली, कुछ कॉन्फिडेंस आया? यस सर. गुड. So you are in the final year ना? आप तो फाइनल ईयर में हैं, आपको तो इंटर्नशिप करनी ही है. यस सर, फाइनल है सर. करेक्ट. तो आप ऑनलाइन के लिए जाओगे या ये फेस टू फेस वाला ऑफलाइन वाला करोगे? सर मे बी सर ऑनलाइन सर. अच्छा, ठीक है. नो इशू. संदीप, आप अपना क्या बोलते हैं, मेरी जो काउंसलर है वो आपसे कनेक्ट में रहेंगी. आकांक्षा, यू बी इन कनेक्ट विद संदीप. संदीप का रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नंबर वगैरह दिया हुआ है. ही इज फ्रॉम GNIOT, ग्रेटर नोएडा, राइट? सो संदीप, you will be getting a call from Akanksha. She will tell you the process, further process. Same goes with Hari also. Akanksha, you have to contact with Hari also. You have got the number. मैं share कर दूंगा आपको हरी का नंबर भी. And शुभम, आप भी प्लीज अपना नंबर शेयर कर दो. शुभम, आप अपना नंबर भी शेयर कर दो so that हमारी शिवम ना सर, शिवम, you already are connected. You know. हाँ जी, ओके. Shubham, I'm talking about Shubham, FIT. Right? So I think, sir, let's call it off. Hari, आप कुछ बोल रहे हैं? यस सर. मैं सभी लोग बोलते कि ऐसा पहली बार ऐसा हुआ तो उसी के लिए बोलने जा रहा था. प्लीज बोलिए. प्लीज हरी, बोलिए. सबसे पहले रेज हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम आया, तो मैं सर ऐसा चांस नहीं बना कि मतलब जितने बार मैंने कॉल किया तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था. मुझे मेरे मोबाइल में पिछली बात होता है. और एक बार मेरा CA का एग्जाम था, मैं की भी तैयारी कर रहा